product backlog of prioritized requirements, as well as a product owner who is responsible for prioritizing these requirements. Now the question is, how do you get this work done? First of all, let's define the Scrum processes in general. Scrum processes address the specific activities and flow of a Scrum project. In total, there are 19 processes, which are grouped into 5 phases. These phases are presented in chapters 8 through 12 of the SBOT guide. These 5 phases describe each process in detail, including the associated inputs, tools, and outputs. Also, in each process, some inputs, tools, and outputs are designated as mandatory, while others are designated as optional. The decision to include any optional input, tool, and/or output depends on the particular project, organization, or industry. Inputs and outputs denoted as mandatory are important for the successful implementation of Scrum in any organization. Next, we'll take a closer look at the phases and the processes enlisted under them. Initiate is the first phase, and the processes carried out as part of Initiate are as follows. Create project vision is the first process performed. In this process, the project business case is reviewed to create a project vision statement that will serve as the inspiration and provide focus for the entire project. The product owner is identified in this process. Identify Scrum Master and stakeholders is the second process, during which the Scrum Master is identified using specific selection criteria. Form Scrum Team is the third process in the Initiate phase. In this process, Scrum team members are identified. Normally, the product owner has the primary responsibility of selecting team members, but he or she often chooses the team in collaboration with the Scrum Master. The fourth process is Develop Epics. In this process, the project vision statement serves as the basis for developing epics, which are large, unrefined user stories. User group meetings may be held to develop epics. Create a prioritized product backlog is the next process. In this process, epics and unrefined user stories are refined and elaborated, then prioritized to create a prioritized product backlog for the project. The done criteria is also established at this point. The last process classified under the Initiate phase is Conduct Release Planning. In this process, the Scrum core team reviews the user stories and the prioritized product backlog to develop a release planning schedule, which is essentially a phased deployment schedule that can be shared with the project stakeholders. The second phase we're going to learn is Plan and Estimate, and these are processes grouped under this phase. First is Create User Stories. We can see that in this process, user stories and their related user story acceptance criteria are created. User stories are usually written by the product owner and are designed to ensure that the customer's requirements are clearly depicted and can be fully understood by all the stakeholders. User story writing exercises may be held. This involves Scrum team members creating the user stories. User stories are incorporated into the prioritized product backlog. Approve, estimate, and commit user stories is the next process. In this process, the product owner approves user stories for a sprint. Then, the Scrum Master and Scrum team estimate the effort required to develop the functionality described in each user story. And the Scrum team commits to develop the customer requirements in the form of approved, estimated, and committed user stories. The third process in the Plan and Estimate phase is Create Tasks. In this process, the approved, estimated, and committed user stories are broken down into specific tasks and compiled into a task list. Often, a task planning meeting is held for this purpose. Estimate tasks is the fourth process. During this process, the Scrum core team, in a task estimation workshop, estimates the effort required to accomplish each item in the task list. The result of this process is an effort estimated task list. The last process conducted during this phase is Create Sprint Backlog. In this process,
the Scrum Core team holds sprint planning meetings, where the group creates a sprint backlog containing all tasks to be completed in the sprint. The third phase we'll discuss in this module is implement. Let's now look at the various processes listed to be carried out during this phase. The first process in the implement phase is create deliverables. In this process, the Scrum team works on the tasks in the sprint backlog to create sprint deliverables. A Scrum board is often used to track the work and activities being carried out. Issues or problems being faced by the Scrum team could be updated in an impediment log. The second process performed is conduct daily stand-up. Every day, a highly focused, time-boxed meeting is conducted, which is called the daily stand-up meeting. This is the forum for the Scrum team to update each other on their progress and any impediments they may be facing. The last process conducted during the implement phase is Groom Prioritized Product Backlog. In this process, the prioritized product backlog is continuously updated and maintained. A prioritized product backlog review meeting may be held, in which any changes or updates to the backlog are discussed and incorporated into the prioritized product backlog as appropriate. The next phase is review and retrospect. There are three main processes that take place during this phase. The first one is convene Scrum of Scrums. In this process, Scrum team representatives convene for Scrum of Scrums meetings in predetermined intervals, or whenever required, to collaborate and track their respective progress, impediments, and dependencies across teams. This is relevant only for large projects where multiple Scrum teams are involved. The second process is demonstrate and validate sprint. In this process, the Scrum team demonstrates the sprint deliverables to the product owner and to the relevant stakeholders in a sprint review meeting. The purpose of this meeting is to secure approval and acceptance of the product or service by the product owner. The last process performed in the review and retrospect phase is retrospect sprint. In this process, the Scrum Master and Scrum team meet to discuss the lessons learned throughout the sprint. This information is documented as lessons learned, which can be applied to future sprints. Often, as a result of this discussion, there may be agreed actionable improvements or updated Scrum guidance body recommendations. The last phase is release. There are two main processes performed during this phase. The first one is ship deliverables. In this process, accepted deliverables are delivered or transmitted to the relevant stakeholders. A formal working deliverables agreement documents the successful completion of the sprint. The second process is retrospect project. In this process, which completes the project, organizational stakeholders and Scrum Core team members assemble to retrospect the project and identify, document, and internalize the lessons learned. Often, these lessons lead to documentation of agreed actionable improvements to be implemented in future projects. This brings us to the end of the segment on the Scrum processes. Before we wind up, let's recap the various phases and processes we learned. Here is the summary of all Scrum processes. I hope you have enjoyed learning with us today. We look forward to seeing you in our next segment, Scrum versus Traditional Project Management. Thank you for learning with us. ये जनाब वेरी क्विक समरी है इसकी 5 फेजेस में 19 प्रोसेस इसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और अगर आपने थोड़ा सा फॉलो किया हो तो आपने ये महसूस किया होगा कि बहुत ही नेचुरल तरीके के साथ इसने स्क्रम को साथ लेके चला है ऑल्दो फिक्स फेजेस हैं और उसके अंदर प्रोसेसेस हैं और देखने में लगता है कि यार ये कैसे मुमकिन है कि आप इसमें एजाइल कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसने इसको हैपन करने की कोशिश की है। अगर आप इनिशिएट की बात करें तो आप ये देखते हैं एक मिनट ओके इनिशिएट दिस फेज इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आपको
जो 6 प्रोसेस नजर आते हैं वो सारे चीजों को असेंबल करने का और तैयारी करने का है। पहला जो प्रोसेस है इनिशिएट वाला, उसमें आप ये नोट करें, सॉरी, इनिशिएट के अंदर जो पहला प्रोसेस है वो है क्रिएट प्रोजेक्ट विजन। प्रोजेक्ट विजन में ना सिर्फ ये कि विजन स्टेटमेंट लिखी जाती है, बल्कि जो आपका प्रोडक्ट ओनर है वो भी यहीं पर ऑन बोर्ड आता है। मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे प्रोडक्ट ओनर ऑन बोर्ड आता है और विजन स्टेटमेंट लिखी जाती है। इससे एक चीज जाहिर होती है, प्रोजेक्ट बिजनेस को रिव्यू किया गया, बिजनेस केस को रिव्यू किया गया और विजन स्टेटमेंट लिखी गई, प्रोडक्ट ओनर भी यहां आइडेंटिफाई हुआ। अब हम अगले स्टेप में अगर जाएं तो अब प्रोडक्ट ओनर इज ऑन बोर्ड ऑलरेडी एंड ही इज आइडेंटिफाइंग द स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर को उसने सिलेक्ट कर लिया और साथ साथ वो जो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर वाला प्रोसेस है वो भी है। स्टेक होल्डर्स को यहाँ वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन जो हमारा की प्लेयर है वो है स्क्रम मास्टर, वो ऑन बोर्ड आ गया। अगले स्टेप में, अच्छा ये किसने किया? ये किया प्रोडक्ट ओनर ने, स्क्रम मास्टर को सिलेक्ट किया। अब जो अगला स्टेप है स्क्रम टीम को बनाने का, ये चीज भी प्रोडक्ट ओनर ही की जिम्मेदारी है। उसकी अपनी सिलेक्शन है, वो किस तरह से टीम को बनाता है। लेकिन ये स्ट्रांगली सजेस्ट किया गया है कि स्क्रम मास्टर को की राय बीच में शामिल की जाए, क्योंकि स्क्रम मास्टर ने आगे काम करना है उन लोगों के साथ। तो इट इज बेटर कि अगर स्क्रम मास्टर को इसमें कोलैबोरेट करने का मौका दिया जाए। टीम की सिलेक्शन में उसकी कुछ ना कुछ से जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर जिम्मेदारी की बात करें तो प्रोडक्ट ओनर जिम्मेदार है स्क्रम टीम की सिलेक्शन का। यूं कह लीजिए कि स्क्रम मास्टर सिफारिश कर सकता है, लेकिन जो हुक्म है वो प्रोडक्ट ओनर का है कि कौन लोग टीम में आएंगे। लाजमी बात है, जिस तरह का काम होगा उस तरह के लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और क्रॉस फंक्शनल होंगे। जिस तरह की स्पेशलाइजेशन चाहिए उसके लोग होंगे, और वो लोग ऐसे होंगे जो एक काम को एक से ज्यादा बंदा कर सकता हो। ये बहुत जरूरी है कि जो स्पेशलाइजेशन हो वो एक आदमी के पास एक से ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो, ताकि वो एक दूसरे की मदद भी कर सकें। सो वी डोंट नीड स्पेशलिस्ट्स, वी नीड जर्नलिस्ट्स। मतलब क्रॉस फंक्शनल टाइप के जर्नलिस्ट हमें चाहिए। अच्छा जी, जब ये भी काम हो जाता है, चौथा प्रोसेस जो है एपिक्स बनाई जाती हैं। अब जो स्टेक होल्डर आपने आइडेंटिफाई किए थे, प्रोडक्ट ओनर का काम है कि वो उनसे गेट इन टच हो जाए और उनसे रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी शुरू करे। ये रिक्वायरमेंट जो हैं ये बड़ी बड़ी, मतलब अनरिफाइंड यूजर स्टोरीज, जिसको हम एपिक भी कहते हैं। अनरिफाइंड इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि यूजर स्टोरी इज सपोज टू बी रिप्रेजेंटिंग वन फीचर आर फंक्शन। लेकिन जब हम स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स उठा रहे होते हैं तो स्टेक होल्डर को इतनी समझ नहीं होती। वो अपनी रिक्वायरमेंट काफी फ्री फॉर्मेट में आपको देता है। कई बार वो अपनी रिक्वायरमेंट, एक ही रिक्वायरमेंट में तीन तीन चार चार फंक्शन या फीचर्स मांग लेता है। तो इसको कहते हैं अनरिफाइंड यूजर स्टोरीज या एपिक्स। तो ये एपिक्स हमें विजन स्टेटमेंट की रोशनी में स्टेक होल्डर से इकट्ठे करने हैं। यहाँ पे हमारी स्टेक होल्डर के साथ जो मीटिंग्स होंगी उनको कहते हैं यूजर ग्रुप मीटिंग्स, और इसमें हम उनके साथ गुफ्तगू करके, उनके साथ गुफ्तगू और डिस्कशन करके वी कम अप विद दीज एपिक्स। नाउ दीज एपिक्स आर नॉट फाइनल। अब इनको अगले स्टेप में हम रिफाइन करेंगे। मतलब जो एपिक्स हैं या अनरिफाइंड यूजर स्टोरीज हैं, मतलब अनरिफाइंड का मतलब है कि वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल फीचर, दे मे बी रिप्रेजेंटिंग मोर देन वन फीचर। मतलब एपिक कह लीजिए या अनरिफाइंड यूजर स्टोरी कह लीजिए। तो इसको फर्दर रिफाइन किया जाता है काम, जिम्मेदारी
प्रोडक्ट ओनर ही की है, लेकिन इसमें जो लोग इसकी मदद करते हैं उसमें स्क्रम मास्टर और स्क्रम टीम शामिल है। क्योंकि इस वक्त तक अभी काम तो कोई शुरू हुआ नहीं, तो ये टीम जो है ये प्रोडक्ट ओनर की मदद को आती है और उसको ये स्टोरीज को रिफाइन करने में मदद करती है, मतलब छोटी स्टोरीज बनाने और हर स्टोरी में इंश्योर करना कि एक एक ही फीचर हो और हर स्टोरी का डन क्राइटेरिया भी हो, और उसके अलावा उनको फिर प्रायोरिटाइज भी करती है कि हाईएस्ट वैल्यू आइटम ऊपर हो। नेचुरली मैं ये नहीं कह रहा कि टीम अपनी मर्जी से प्रायोरिटाइज करती है। जो आपका प्रोडक्ट ओनर है ना जी, वो कंडुएट है स्टेक होल्डर के साथ। वो बार बार जाता है, कस्टमर से पूछता है उनकी प्रायोरिटी ये ज्यादा बेहतर है, पहले ये करें या ये करें, तो प्रायोरिटाइजेशन वो बार बार उनसे कंफर्म करता है। टीम जो भी राय देती है उसको कस्टमर की राय मुकद्दम है। वो जो भी कहता है, जिस चीज को प्रायोरिटी देता है, जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, हमने भी उसी चीज को ऊपर रखना है। लेकिन इस काम का जो डोंकी वर्क करना है उसमें आपके जो स्क्रम टीम और स्क्रम मास्टर मददगार का काम करते हैं। फिर डन क्राइटेरिया यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है। असल में डन क्राइटेरिया और एक और हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसमें जरा सा फर्क है। मैं ये बताता चलूं कि एक्सेप्टेंस इज रिलेटेड टू ईच यूजर स्टोरी। हर यूजर स्टोरी में क्या क्या चीजें होंगी जो चेक की जाएंगी, जिसकी बुनियाद पर इस स्टोरी को एक्सेप्ट किया जाएगा, वो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। डन क्राइटेरिया का मतलब है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमसे ये कस्टमर काम करवा रहा है, स्टेक होल्डर काम करवा रहे हैं, वो तो जो काम करवा रहे हैं वो तो हमने उसको देना है, लेकिन हमारे अपने भी तो कोई स्टैंडर्ड होंगे ना, कि हम इससे बुरा काम नहीं करते किसी के लिए भी, इससे कम क्वालिटी का काम नहीं करते, या हमारे अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो जो हमारी अपनी पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स हैं, या फॉर दैट मैटर अगर फर्ज करें हम आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और आईएसओ की तरफ से हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ पाबंदियां हैं कि आप फलाना काम ऐसे करेंगे, तो वो जो इस किस्म की पॉलिसीज और पाबंदियां हैं जो हमारे पे लागू होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है जो कोई भी काम हम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, हम उन चीजों के पाबंद हैं। वो हमारा बुनियादी डन क्राइटेरिया है। भले आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूजर स्टोरीज के सारे पूरे कर लें, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डन क्राइटेरिया के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो ये कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इजाजत नहीं होगी कोई भी डिलीवरेबल बाहर निकालने की, अनटिल एंड अनलेस वो ऑर्गेनाइजेशन के डन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा डन तब होता है जब आप डेफिनेशन ऑफ डन पे भी पूरे उतरे और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी पूरा करें, तब होगा जो हम डिलीवर करेंगे। तो ये हो गया जनाब अली कि एपिक को या अनडिफाइंड यूजर स्टोरी को हम तोड़ के छोटी स्टोरीज बनाते हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं और उसका डन क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करते हैं। Sixth and last process of initiation is conduct release planning. Again, it is the job of the product owner. स्क्रम कोर टीम उसके साथ बैठती है, रिव्यू करती है तमाम यूजर स्टोरीज को इन द प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग, और अब जरा गौर कीजिएगा, इस सारी पिक्चर को अपने जहन में लाकर हॉलिस्टिकली वो एक जनरलाइज्ड रिलीज प्लान बनाते हैं कि जनाब क्या स्केड्यूल होगा, हम कब कब क्या रिलीज कर पाएंगे कस्टमर को, हम कब कब क्या चीजें रिलीज कर पाएंगे। दीज आर फिजिकली शिपेबल आइटम्स। कि हम जनाब जैसे हम बात कर रहे थे ना कि आपने जो एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, उस सॉफ्टवेयर का फलाना मॉड्यूल जो है 3 महीने बाद डिलीवर हो जाएगा, और फिर जनाब इसका फलाना वो आप इस्तेमाल करना शुरू करें, फिर फलाना मॉड्यूल हम मजीद 2 महीने बाद डिलीवर कर देंगे। और ये जो आपका रिलीज स्केड्यूल है ये अप्रोक्सीमेट होता है, ये कोई बिल्कुल 100% एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि काम जब आइट्रेशन में होगा तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कस्टमर मुसलसल
रिक्वायरमेंट्स को बदल रहा है। लेकिन ये रिलीज प्लान जो है ये एक दफा बनेगा और उसके बाद हर स्प्रिंट के बाद हम इसकी ट्वीकिंग करते रहेंगे। लेकिन ये जो रिलीज प्लान है दिस विल बी शेयर्ड टू दी कस्टमर। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कस्टमर के साथ है उसमें ये वाजे तौर पे लिखा हुआ होना चाहिए कि जो शराइत या जो रिलीज प्लान वगैरह यहाँ लिखा गया है वो दैट इज कंडीशनल टू द चेंजेस जो कि कस्टमर बताता रहेगा। ठीक है, इसी तरह हमारी पेमेंट टर्म्स भी कुछ इसी हिसाब से होनी चाहिए। खैर जी, ये हमारी 6 प्रोसेस इनिशिएशन की हो गई। फिर आप आ जाइए प्लान और एस्टिमेट पे। अच्छा, आमतौर पे जब हम किसी प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हैं आम वाटरफॉल मॉडल के अंदर, तो प्लानिंग जो होती है हमारी वो पूरे प्रोजेक्ट की होती है। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्लान और एस्टिमेट के अंदर टीम ने स्क्रम टीम ने प्रोडक्ट बैकलॉग के पास जाना है, जो प्रायोरिटाइज हुए काम है उनको देखना है और ऊपर से एस्टिमेट करना शुरू करना है कि जनाब ये काम कितने यूजर स्टोरीज का है, सॉरी स्टोरी पॉइंट्स कहते हैं उसको। हर स्टोरी की लेवल ऑफ डिफिकल्टी या टाइम के हिसाब से या डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हर स्टोरी को एक नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स में एस्टिमेट करना है कि ये कितने स्टोरी पॉइंट्स का काम है। टीम को अपनी अहलियत का अंदाजा लगाना होता है कि हम इस 2 हफ्ते के पीरियड में जो भी हमारा एक आइट्रेशन होगा, स्प्रिंट होगा, उसमें हमारा क्या ख्याल है कि हम कितना काम करने की काबिलियत रखते हैं। तो हम सब मिलके फर्ज करें अगर 200 स्टोरी पॉइंट का लोड कैरी करने का अंदाजा है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे कि उनको वो जो प्रायोरिटाइज बैकलॉग पड़ा हुआ है उसमें स्टोरीज को अच्छी तरह से एस्टिमेट करेंगे और देखेंगे कि ये कितने स्टोरी पॉइंट्स की हर एक स्टोरी है। फर्ज करें पहली स्टोरी 50 स्टोरी पॉइंट्स की है, दूसरी 60 की है, तीसरी 10 की है, तो हम उनको उठाते जाएंगे अंटिल वी रीच द फिगर ऑफ 200। 200 उससे थोड़ा लेस पे हम रुकेंगे और बस उतना काम हम उठाएंगे। अगर हमने 180 के मुताबिक ये हम कर लेंगे। तो प्लान एंड एस्टिमेट में हम दिस इज कंपोज्ड इसमें जो काम है उसमें आप देखिए कि पहले तो यूजर स्टोरीज बनानी है। मतलब अभी हमारा था एपिक्स थे ना, अनडिफाइंड यूजर स्टोरीज थी। पहला काम तो हमने ये करना है कि उन यूजर स्टोरीज बनानी है और उनका एस्टिमेट करना है, मतलब यूजर स्टोरी का एस्टिमेट करना है। और एस्टिमेट करेंगे तो स्टोरी पॉइंट्स वगैरह का मसला होगा और लाजमी बात है कि जब आपने रिलीज प्लानिंग की उस वक्त भी हमने हल्की फुल्की एस्टिमेशन वहां पर भी की थी। फिर हम करेंगे जी कि अप्रूव एस्टिमेट एंड कमिट यूजर स्टोरीज। मतलब हम प्रोडक्ट ओनर को बताएंगे, टीम मेंबर्स जो डेवलपमेंट टीम है, कि जनाब हम ये समझते हैं कि हमारी कैपेसिटी 200 है और हम 180 का काम उठा रहे हैं, तो ये कोई 8 काम हैं जो हम यहाँ से कमिट करना चाहते हैं, हम ले जाना चाहते हैं, क्या हमें इजाजत है। वो इन्हें अप्रूव करेगा, हाँ तुम्हें इजाजत है, और ये कमिट करेंगे कि हम ये यूजर स्टोरीज लेके जा रहे हैं और इनको इन पे काम शुरू कर रहे हैं। जब ये कमिट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद, कमिट होने के बाद, इन यूजर स्टोरीज को इस स्प्रिंट की मुद्दत के दौरान ना तो तब्दील किया जा सकता है, ना ही इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि एवरी यूजर स्टोरी आई एम पिकिंग अप मस्ट बी accompanied बाय इट्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं होगा तो मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। ये काम जो है हमने ये प्रोडक्ट बैकलॉग पे जाके किए कि मतलब एपिक्स को स्टोरीज बनाया और उसके बाद हमने उसमें से यूजर स्टोरीज जो पिक करनी है उनको कमिट कर दिया, अप्रूव करवा लिया। इसके बाद हम अपने स्प्रिंट के अंदर वापस आ जाते हैं
मतलब टीम जो है यहाँ से स्टोरीज उठा के कमिट करके स्प्रिंट के अंदर दाखिल हो गई है। अब आपका 2 हफ्ते का पीरियड शुरू हो गया। यहाँ पर पहला काम आपने जो करना है वो आपने जो हर यूजर स्टोरी है उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है टास्क्स के अंदर। ऐसा ही है जैसे हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन वो तो हम पूरे प्रोजेक्ट का बनाते हैं। इस वक्त हम वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द होल प्रोजेक्ट, वी आर कंसर्न्ड अबाउट ईच टास्क। हर टास्क को ब्रेक डाउन करें, फिर उनका जो भी सीक्वेंस बनाना है, एस्टिमेट करना है कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ऑल ऑल द एस्टिमेट्स एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे होंगे। और पहले क्रिएट टास्क कर लिए, फिर उनके एस्टिमेट कर लिए, उसके बाद जनाब सॉरी पहला टास्क जो होना चाहिए था वो होना था क्रिएट स्प्रिंट बैकलॉग। जो हम यूजर स्टोरीज ओके हाँ ठीक है मैं सही जा रहा हूँ। एस्टिमेट टास्क करने के बाद जो जितने भी टास्क आपने सीक्वेंस जो उनका बनाया है उस सीक्वेंस में टास्कों को रखकर ये बनेगा हमारा स्प्रिंट बैकलॉग। जो आपका प्रोडक्ट बैकलॉग था वो किस चीज का था? वो यूजर स्टोरीज का बैकलॉग था वैल्यू के हिसाब से। यहां पर भी वही यूजर स्टोरीज हैं मगर उनके टास्क में ब्रेक करके और उनका सीक्वेंस बना दिया गया है, नेचुरल सीक्वेंस हाउ दिस विल बी डेवलप्ड। दिस इज नाउ कॉल्ड द स्प्रिंट बैकलॉग। अब ये वो स्प्रिंट बैकलॉग है जिसके ऊपर आपका स्क्रम बोर्ड, बर्न डाउन चार्ट, बर्न अप चार्ट, कैनबैन चार्ट, जो भी कुछ होना है वो इन टास्कों के ऊपर होना है। ये आपका स्प्रिंट बैकलॉग कहलाएगा। टास्क्स होते हैं स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर। और जो प्रोटाइज आपका प्रोडक्ट बैकलॉग था उसमें यूजर स्टोरीज होती हैं। हमने यहाँ पर यूजर स्टोरीज जो कमिट की थी उनको हमने टास्क में तोड़ लिया, फिर टास्कों को एस्टिमेट किया और फिर उनको उनका सीक्वेंस बनाया और उसको हमने रख लिया स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर। वैसे जब जो कुछ हम एक स्प्रिंट के अंदर करते हैं, क्लासिकली स्पीकिंग दैट इज द होल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर मैं ट्रेडिशनल वाटरफॉल की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो कुछ भी होता है ये एक स्प्रिंट के अंदर होता है। अगर आपने कोई नेटवर्क डायग्राम बनाना है, कोई क्या कहते हैं गैन चार्ट बनाना है, ऑल्दो वी डोंट मेक गैन चार्ट, लेकिन यूं समझ लीजिए कि जो कुछ भी करना है इस काम को तक पहुंचाने के लिए, वट एवर टूल्स यू नीड टू यूज वो आपने सब के सब इधर इस्तेमाल करने हैं। तो प्लानिंग सारी यहाँ हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्लानिंग इज नॉट फॉर द होल प्रोजेक्ट, वी आर ओनली प्लानिंग दिस वन आइटरेशन एंड दैट्स अबाउट इट। जब हम ये डिलीवर कर लेंगे तो फिर अगली आइटरेशन के बारे में सोचेंगे। तो एक वक्त हम एक आइटरेशन के बारे में सोच रहे हैं। वी आर नॉट वरिड किससे पहले क्या हो चुका है, वी आर नॉट वरिड किसके बाद क्या होना है, जब होगा तो देखा जाएगा। तो ये जनाब आपका प्लानिंग वाला काम खत्म हो गया। इसमें जनाब पहला स्टेप है क्रिएट यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरीज और उनके रिलेटेड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाया जाता है। जिम्मेदारी प्रोडक्ट ओनर की होती है, लाजमी बात है। बेशक इसमें मदद उसकी स्टेक होल्डर भी करते हैं, अपनी टीम भी करती है, लेकिन अगर वन सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करनी है तो प्रोडक्ट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल। डिजाइन टू इंश्योर दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिपिक्टेड एंड अंडरस्टूड। इसका मतलब है एवरीथिंग वी राइट हेयर इज एक्चुअली कंफर्म्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर से पूछ के हम उसको फाइनलाइज करते हैं। इन्वॉल्व स्क्रम टीम मेंबर्स क्रिएटिंग यूजर स्टोरीज, मतलब इसमें स्क्रम टीम का भी पार्ट है, मतलब वो लोग बैठते हैं साथ, वो इसको बनाने में मददगार होते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा उसने ये नहीं कहा कि स्क्रम टीम की जिम्मेदारी है। स्क्रम टीम मददगार है, इन्वॉल्व है, मगर जिम्मेदारी प्रोडक्ट ओनर ही की है। फिर इसको जनाब इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है प्रोडक्टाइज प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर, और प्रोडक्ट बैकलॉग फिर हमारी अगले स्टेप में आगे काम करने के लिए। अगला स्टेप है अप्रूव, एस्टिमेट एंड कमिट यूजर स्टोरीज। ये हमारा दूसरा प्रोसेस है प्लानिंग का। प्रोडक्ट ओनर यूजर स्टोरीज को अप्रूव करता है,
कि अब आप ये जो ऊपर वाली हाईएस्ट वैल्यू आइटम्स हैं, इनमें से आप कितनी चीजें हैं जो आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। टीम ये सजेस्ट करती है कि हम इतने आइटम उठाना चाहते हैं। स्क्रम मास्टर एंड स्क्रम टीम एस्टिमेट करता है उसके स्टोरी पॉइंट्स को, और स्क्रम टीम फिर कमिट करती है कि सर ये 8 काम हम लेके जा रहे हैं टू डेवलप द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड, एस्टिमेटेड एंड कमिटेड यूजर स्टोरीज। ये यूजर स्टोरीज जो कि यहाँ से आपने अप्रूव करा ली, एस्टिमेट भी कर ली उनकी यूजर स्टोरी पॉइंट्स, और उन्हें कमिट भी कर दिया, ये जो स्टोरीज हम उठा के ले जा रहे हैं यूजर स्टोरीज इनटू our sprint are called approved, estimated and committed user stories। जो स्टोरीज उठा ली जाती हैं काम करने के लिए, स्प्रिंट के लिए, उनको अप्रूव्ड, एस्टिमेटेड एंड कमिटेड यूजर स्टोरीज कहते हैं। या अगर इन शॉर्ट कहना चाहें तो आप कहते हैं कमिट कर दिया हमने, ये यूजर स्टोरीज कमिट हो चुकी हैं। फिर जनाब अब आप आ जाते हैं अपने स्प्रिंट के अंदर। यहाँ बैठ के हम वो जो अप्रूव्ड, एस्टिमेटेड एंड कमिटेड यूजर स्टोरीज थी उनको हम मजीद ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ टास्क लिस्ट। उस टास्क की प्लानिंग की जाती है, ये पूरी टीम बैठती है, उसको प्लान करती है। इसको स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कहते हैं। ये इसमें एस्टिमेशन वगैरह सब शामिल है, और ये लोग यहाँ पर उसका जो मर्जी करें, मतलब उसको सीक्वेंस बनाएं, नेटवर्क डायग्राम बनाएं, क्रिटिकल पाथ बनाएं। लेकिन जो स्प्रिंट का तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज टू कीप द थिंग्स सिंपल। हम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स इस्तेमाल नहीं करते। ये भी जा सकते हैं, मना नहीं करते, लेकिन कोशिश यही होती है कि कीप इट सिंपल। उसके बाद जनाब आपका अगला टास्क है कि अभी जो टास्क आपने बना लिए हैं, जो टास्क आपने बना लिए हैं उनको एस्टिमेट करें। उन पे कितनी एफर्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कौन बंदा क्या काम करेगा, वगैरह वगैरह। स्क्रम की जो कोर टीम है इन अ टास्क एस्टिमेशन वर्कशॉप एस्टिमेट्स एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच इन द टास्क लिस्ट। रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज एन एफर्ट एस्टिमेटेड टास्क लिस्ट। पहले हमने शुरू किया था, एक टास्क लिस्ट थी हमारे पास, अब उसको हमने एफर्ट एस्टिमेटेड टास्क लिस्ट बना लिया। अब ये जो एफर्ट एस्टिमेटेड टास्क लिस्ट है, इसको अगले स्टेप के अंदर हम अपने स्प्रिंट के बैकलॉग में डाल देते हैं। स्क्रम कोर टीम होल्ड स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग कंटेनिंग ऑल टास्क टू बी कंप्लीटेड इन द स्प्रिंट इज क्रिएटेड। ठीक है ना, ये भी वही उसी तरीके के साथ। और इसमें ख्याल रखें कि भले टास्क में कोई आपस में हो सकती है, डिपेंडेंस हो सकती है, लेकिन जनरली जिस तरतीब में यूजर स्टोरीज ने होना है, जनरली वही तरतीब आपके टास्कों की होंगी। इन जनरल अगर बीच में कोई डिपेंडेंसी की वजह से कोई टास्क ऊपर नीचे होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली ये यूजर स्टोरी बाय यूजर स्टोरी काम होगा, और वो वही सीक्वेंस मेंटेन किया जाएगा जो हमारे प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बैकलॉग में था। फिर आ जाता है जी इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूशन का अमल। यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें प्रोसेस हैं जो कि एग्जीक्यूशन का काम करती हैं। और जैसे कि इवन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है, एग्जीक्यूशन का काम है जो प्लान किया उस पर अमल करना। तो एज सच यहाँ काम कुछ नहीं होता। काम इसमें देखें तो कोई सिर्फ 3 चीजें हैं। वो कहता है कि आप जिस तरह प्लान किया काम करें तो डिलीवरेबल बन जाएगा। ठीक है ना जी। अब उसमें और कुछ नहीं देखना, क्रिएट द डिलीवरेबल, डू एज प्लान एंड क्रिएट द डिलीवरेबल। और उसके बाद आपने रोजाना के रोजाना एक स्टैंड अप मीटिंग करनी है, जिसको स्क्रम मीटिंग भी कहते हैं। और ये मीटिंग 10 से 15 मिनट की होती है, और ये आप अपने स्क्रम मास्टर के साथ करते हैं। तो अगर 10 लोग हैं तो वो रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए स्क्रम मास्टर के साथ खड़े हो जाएंगे, और हर बंदा 3 सवालों के जवाब देता है। मैंने आज क्या करना था, क्या किया है, और कल क्या करूंगा, और मेरे मसाइल क्या हैं, इम्पेडिमेंट्स मेरे क्या हैं। तो वो जो इम्पेडिमेंट्स हैं, वैसे भी वो जो काम कर रहे होते हैं तो एक इम्पेडिमेंट लॉग के नाम से एक चार्ट भी बना हुआ होता है,
और स्क्रम मास्टर उसको देख भी रहा होता है, लेकिन ये टीम मेंबर जब ये सब पॉइंट बताते हैं तो वो नोट कर लिया जाता है, इम्पेडिमेंट लॉग को अपडेट कर लिया जाता है उनकी रोशनी में, और फिर स्क्रम मास्टर की वो जिम्मेदारी बन जाती है कि उन इम्पेडिमेंट्स पे वो वर्क करे और अगले दिन काम शुरू होने से पहले उन मसाइल का हल कर चुका हो। तो जनाब डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है, उसका ये फायदा, और उसके बाद बस काम आपका खत्म हो गया, आप क्रिएट डिलीवर कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक होता जाएगा। और जब ये आप कर लेंगे ये स्प्रिंट मुकम्मल, तो फिर आप अपना फिर दोबारा बैकलॉग की तरफ चले जाएंगे। उसमें उस वक्त तक नई कुछ रिक्वायरमेंट्स भी कस्टमर की तरफ से आ गई होंगी। उन रिक्वायरमेंट्स को आपने ग्रूम करके प्रायोरिटाइज करना है। ग्रूमिंग का मतलब होता है कि आपने, जैसे कोई आपके घर में प्लांट या बुश लगी हुई है, उसमें पत्ते बड़े छोटे हो जाते हैं, तो आप उसकी कटाई करते हैं, बराबर करते हैं। तो अभी हम इसकी कटाई करने जा रहे हैं अपने प्रायोरिटाइज बैकलॉग की, और उसमें जो चीजें ऊपर नीचे हुई हैं उनको थोड़ा उनकी नोक पलक दुरुस्त करके और नई रिक्वायरमेंट्स को मतलब ग्रूमिंग का मतलब तो रिफाइन कर रहे हैं ना उसको, कि अगर कोई एपिक है तो उसको तोड़ के यूजर स्टोरी बना लिया जाए और फिर उसको प्रायोरिटी में जिस जगह उसकी जगह बनती है वहां फिट कर दिया जाए। दिस इज कॉल्ड ग्रूमिंग दी प्रायोरिटाइज बैकलॉग, और हर स्प्रिंट के खत्म होने के बाद ये प्रोसेस किया जाता है। ये हो गया जी इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट के बाद अगला जो स्टेप है हमारा वो, अच्छा खैर इम्प्लीमेंट के अंदर जो तीन चीजें उनको एक दफा देख लें। जो पहला डिलीवरेबल है, इसमें स्क्रम टीम वही जो टास्क लिस्ट वगैरह बनाई थी, वो स्प्रिंट बैकलॉग जो बनाया हुआ है उसके मुताबिक काम करती है और स्प्रिंट के डिलीवरेबल्स क्रिएट होते जाते हैं। स्क्रम बोर्ड इस दौरान यूज किया जाता है टू ट्रैक दी वर्क एंड एक्टिविटीज, कैसी प्रोग्रेस वगैरह जा रही है। इश्यूज और मसाइल जो हैं वो इम्पेडिमेंट लॉग में रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि स्क्रम टीम फेस कर रही है। फिर जनाब आपका जो कंडक्ट डेली स्टैंड अप मीटिंग है, एवरी डे a highly focused time boxed meeting is conducted, referred to as the daily stand up meeting. Forum for the scrum team is to update each other on their progress and impediment. जब वो एक आदमी बोल रहा होता है सबको पता चल रहा होता है क्या क्या हो रहा है, किसने क्या किया, कितना कल क्या करेगा वगैरह वगैरह। तो इंडिविजुअली वो हर बंदा वहां पे बोल रहा होता है, तो एवरीबॉडी इज अपडेटेड एंड नेचुरली द स्क्रम मास्टर इज अपडेटेड। एंड स्क्रम मास्टर खास तौर पे उसका काम है इम्पेडिमेंट्स को रिमूव करना, उसको इम्पेडिमेंट्स का पता चल जाता है अपडेटेड फिगर, और वो फिर उसके मुताबिक आगे अपने इम्पेडिमेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं। तीसरा काम ग्रूम प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग। द प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग is continuously updated and maintained. Prioritized product backlog review meeting may be held. Any changes or update to the product to the backlog, ये प्रोडक्ट बैकलॉग की बात हो रही है, स्प्रिंट बैकलॉग की बात नहीं हो रही। तो जो भी चेंजेस लानी है उनको डिस्कस किया जाता है और इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। फिर आ जाइए रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट के अंदर। रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट के अंदर हमारा बेसिकली काम है दो काम चीजें करना। एक, जो किया है उसको रिव्यू करना, रिव्यू करवाना, या यूं कहना चाहिए कि उसकी एक्सेप्टेंस कराना। हमने जो डिलीवरेबल बनाए हैं, जो जो डिलीवरेबल बनाए हैं, उनको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट ओनर और कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना और उनसे उसका अप्रूवल सीक करना। वो अगर तो उस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक बने हैं तो वो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो आर्गू करेंगे कि गलत है, आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो पूरी यूजर स्टोरी अनएक्सेप्टेड कहलाएगी और इट विल बी डिपॉजिटेड बैक टू द प्रोडक्ट बैकलॉग फॉर वर्किंग इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। ये बात मैं आपको कह चुका हूं कि जो कमिट हो चुकी है स्टोरी, वो ना तो स्टोरी बदल सकती है ना उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अगर कस्टमर ये कहता है कि नहीं जी इसको तो ऐसे नहीं ऐसे कर लें, हम बेशक कस्टमर की हर बात सुनते हैं और मानते हैं, लेकिन कमिट हुई स्टोरी को हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बदल सकते हैं। अलबत्ता अगर वो कह रहा है, हम उसे कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, आपका हुक्म सर आंखों पे, आपकी रिक्वायरमेंट हमने एक नई
यूजर स्टोरी के तौर पे नोट कर ली है। जब उसका वक्त आएगा तो वो भी कर देंगे, मतलब जो चेंज आपको चाहिए वो हम कर देंगे। लेकिन अभी जो कमिट हुई स्टोरी है वो तो उसी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके ऊपर कमिट हुई है। वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हम आपकी जिस तरह आप चेंज बता रहे हैं, हम 100% उसको अगले अगले स्प्रिंट के अंदर कर देंगे। तो इनकार हम नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि अभी आप जरा इस उसी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक इस चीज को एक्सेप्ट करें, ताकि कम से कम हमारा काम आगे चलने के काबिल हो। एंड डिटर्मिनिंग वेज टू इम्प्रूव दी प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स, और ये जो डिटर्मिनिंग वेज है इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्ट। हम अपना पोस्टमार्टम करते हैं, डीब्रीफ करते हैं और देखते हैं हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या खोया, क्या पाया, और वो लेसन लर्न करके ये टीम दरअसल सीखती इसी से। टीम की जो वेलोसिटी है वो इम्प्रूव होगी अगली दफा, वो इसी वजह से होगी कि हमने जो गलतियां की हैं वो आइंदा नहीं करेंगे, और हमें अपनी स्पीड का, अपनी वेलोसिटी का और ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा, और अगली दफा हम उससे ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे। और जैसे जैसे देखें, पहली दफा जब टीम बनी थी तो हो सकता है कि ये सारे लोग जो हैं ये अजनबी हों, इन्होंने पहले कभी इकट्ठे काम ना किया हुआ हो, तो इनको अपनी वेलोसिटी का अंदाजा नहीं हो सकता। ये किसी फार्मूले के तहत या किसी और तरीके से अंदाजा तो लगाते हैं कि हम पिछली टीम में थे, वहां हमारी ये वेलोसिटी थी, और हर एक बंदा अपना अपना अंदाजा बताता है, तो वो फिर अपने एक डिटरमिन करते हैं कि हमारी क्या वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी गलत भी हो सकती है। तो ये पहली दफा पहला जब स्प्रिंट चलाएंगे उसके अंदर हो सकता है कि उन्होंने जो 200 स्टोरी पॉइंट्स का अंदाजा लगाया था वो गलत साबित हो, और वो उससे कम करने की काबिलियत रखते हों, या हो सकता है ज्यादा करने की काबिलियत रखते हों। वी डोंट नो। ये तो उस स्टोरी को करने के बाद पता चलेगा, और फिर वो जब ये रेट्रोस्पेक्ट करेंगे तो वहां फिर उनको तरीके नजर आएंगे कि व्हाट शुड वी सेट टारगेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। और इस तरह उनकी जो वेलोसिटी है वो स्टेबल होती जाती है। 3 से 6 स्प्रिंट के बाद टीम को सही मानों में अपनी वेलोसिटी का अंदाजा होता है। ठीक है ना, वैसे तो इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, पहले से दूसरा बेहतर होता है, दूसरे से तीसरा स्प्रिंट बेहतर होता है, लेकिन 3 स्प्रिंट तकरीबन कम अज कम चाहिए होते हैं इसको स्टेब्लिश होने में, और फिर 6 में बिल्कुल स्टेब्लिश हो जाती है। रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें जनाब 3 काम हो रहे हैं। एक है कन्वीन स्क्रम ऑफ स्क्रम, विच इज ऑप्शनल, बिकॉज दिस विल ओनली हैपन इफ यू हैव मोर देन वन स्क्रम टीम्स वर्किंग at the same time. If that is not the case, there is no need for scrum of scrum, क्योंकि स्क्रम ऑफ स्क्रम का मतलब ही ये है कि अगर एक से ज्यादा स्क्रम टीमें हैं तो ये सारे स्क्रम मास्टर जो इन सब टीमों के हैं ये अपने ऊपर के एक चीफ स्क्रम मास्टर को रिपोर्ट करेंगे। तो उस सूरत में जैसे आपकी स्टैंड अप मीटिंग होती है तो इनकी होगी स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग। तो उसको कन्वीन करना, स्क्रम ऑफ स्क्रम को कन्वीन करना, दिस वुड देन बिकम a step, a part of review and retrospect। इसके अलावा जो हर प्रोजेक्ट करेगा उसमें वैलिडेट स्प्रिंट किया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट एंड वैलिडेट स्प्रिंट। इसमें आपने जो डिलीवरेबल बनाया है वो आप कस्टमर या प्रोडक्ट ओनर के सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और उससे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के तहत वैलिडेट करवाएंगे। अगर वो वैलिडेट करता है तो उसे एक्सेप्टेड करार दिया जाएगा, और अगर नहीं करता तो उसको रिजेक्टेड करार दिया जाएगा। Rejected user stories will go back to the product backlog, जो भी उनकी प्रायोरिटी बनती है उस जगह पे वापस जाएंगी, और फिर अगले स्प्रिंट में उनको दोबारा कंसिडर किया जाएगा। ये आपको बताया ही था मैंने कि इसकी ड्यूरेशन क्या होती है इस मीटिंग की। उसके बाद फिर आप एक लेसन लर्न का एक करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्ट स्प्रिंट। रेट्रोस्पेक्ट स्प्रिंट में आप टीम बैठ जाती है, बुनियादी तौर पे जो टीम का मसला है आपस में बैठते हैं और वो फिर डिबेट करते हैं हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, और उधर से लेसन लर्न करते हैं। अब ये जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं इसमें ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। अगर यहाँ कस्टमर आके बैठना चाहे रेट्रोस्पेक्ट में, हमें कोई इतराज नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट ओनर आके बैठना चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन याद रहे कि ये मीटिंग टीम की है,
तो वो जो बाकी लोग आके बैठेंगे वो सुन तो सकते हैं, वो इसके अंदर इंटरफियर ना करें। सिमिलरली जब मैं डेमोन्स्ट्रेट एंड वैलिडेट स्प्रिंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर को हमने बुनियादी तौर पे अप्रूव करवाना होता है। वैसे तो कस्टमर भी साथ बैठ सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे प्रोडक्ट ओनर इज द वॉइस ऑफ कस्टमर, और वही इनको अप्रूव या रिजेक्ट करता है। इसके अलावा जो हमारा नॉर्मल स्प्रिंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब वो हो रहा होता है, जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसकी, तो उस स्प्रिंट के दौरान वी अलाउ एनीवन टू कम इन, बट हम कहते हैं जी आप बराए मेहरबानी टीम को ना बुलाएं, टीम को ना डिस्टर्ब करें, ठीक है जी। तो वो इंटरफियर नहीं कर सकते, देख सब कुछ सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स लगे हुए हैं, उन पे सब प्रोग्रेस चल रही है, दे कैन रीड एवरीथिंग, दे कैन बी एब्रेस्ट विद एवरीथिंग। हाँ, स्क्रम मास्टर उनकी मदद करेगा, वो उनको ब्रीफ करेगा जो भी कुछ करना है, और टीम को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा। फिर जनाब ये पहला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया, कन्वीन स्क्रम ऑफ स्क्रम। स्क्रम टीम रिप्रेजेंटेटिव्स कन्वीन फॉर स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग अगर जरूरत है, कोलैबोरेट एंड ट्रैक देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्रेस। तो सारे स्क्रम मास्टर चीफ स्क्रम मास्टर के पास जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो फिर वही बताएंगे, वही जिस तरह 3 सवाल पूछे जाते हैं, या उनसे पूछा जाएगा आपकी टीम ने क्या किया, इस पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट से अब तक आपकी टीम ने क्या किया, आपकी टीम आगे क्या करना चाहती है, आपको कोई मसाइल तो नहीं है दूसरी टीमों के साथ, कुछ लेना देना तो नहीं है, कोई इम्पेडिमेंट्स हो तो बता दें, कोई डिपेंडेंसीज हो, कोई और मसाइल हो टीमों के दरमियान, तो वो फिर ये जो चीफ स्क्रम मास्टर है उन मसाइल को दूर करता है। ये सिर्फ उस वक्त रेलिवेंट होगा ये प्रोसेस अगर बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें एक से ज्यादा टीमें एक ही वक्त में काम कर रही हैं, अदरवाइज दिस प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा प्रोसेस, डेमोन्स्ट्रेट एंड वैलिडेट स्प्रिंट, वेरी मच रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। स्क्रम टीम यहाँ पर अपने डिलीवरेबल जो बनाती है, जो अपनी हर निकल रहा है, उसको एंड कस्टमर के सामने डेमोन्स्ट्रेट करती है, उसके नतीजे में उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया। secure approval and acceptance of the product of service by the product owner। तो प्रोडक्ट ओनर हमारे स्क्रम के अंदर प्रोडक्ट ओनर इज द मेन पर्सन, हम कस्टमर कैन सिट देयर, मगर बेसिकली प्रोडक्ट ओनर काफी है। तीसरा जनाब आपका रेट्रोस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लेसन लर्न करते हैं, स्क्रम मास्टर उसकी टीम दे मीट टुगेदर, प्रोडक्ट ओनर भी यहाँ मैंडेटरी नहीं है, उसकी ये मीटिंग नहीं है, अगर वो आके बैठना चाहे खामोशी से बैठ जाए, देख ले सुन ले, कोई भी आके बैठ जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे दिस इज अ डिस्कशन बिटवीन द स्क्रम मास्टर एंड द स्क्रम टीम। इंफॉर्मेशन इज डॉक्यूमेंटेड एज लेसन्स लर्नड which can be applied to future sprints. There may be agreed actionable improvements or updated Scrum guidance body recommendations जो इसके नतीजे में निकल सकती हैं। Last but not the least is release. Release के अंदर is composed of processes related to delivering acceptance deliverable to the customer and identifying, documenting and internalizing the lessons learned। मतलब दो काम है, एक तो जो डिलीवरेबल है वो एंड प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचाना, और दूसरा पूरे प्रोजेक्ट के ओवरऑल लेसन लर्न करना। पहले तो हम जो रेट्रोस्पेक्ट कर रहे थे वो स्प्रिंट बाय स्प्रिंट कर रहे थे ना, अब ये पूरे प्रोजेक्ट का रेट्रोस्पेक्ट होगा, और यहाँ फिर प्रोडक्ट ओनर लाजमी हो जाएगा। तो दो प्रोसेस हैं जी, शिप डिलीवरेबल्स और रेट्रोस्पेक्ट प्रोजेक्ट। शिप डिलीवरेबल्स में वो जो आपकी रिलीज डेटें लगी हुई थी ना ऊपर, याद है ना, रिलीज प्लान बनाया था, उस पर एक स्केड्यूल बनाया था। अब बात यह कि फर्ज करें 3 महीने के बाद वो पहली शिपमेंट जानी है, पहला पैकेज जाना है, तो 3 महीने में अगर हमारे 2-2 हफ्ते के स्प्रिंट हैं, तो 3 महीने में तो 6 हो चुके होंगे। तो 6 जितनी इस 6 स्प्रिंट्स में जितनी एक्सेप्टेंस करवाई थी, उनके सारे पैकेट बन के, उन डिलीवरेबल्स के पैकेट बन के पैक होके गाड़ी में रख दिए जाएंगे और रखे जाते रहेंगे। जब 3 महीने पूरे होंगे, जितने पैकेट गाड़ी में रखे हैं वो शिप कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आप ये कहेंगे कि नहीं जी वो शिपमेंट की डेट जो है, शिपमेंट की डेट का कोई मसला नहीं है, अगर उसमें ज्यादा चीजें
कमिट की गई थी शुरू में, तो आपको पहले ही पता है कि वो तो हम हर स्प्रिंट के बाद इसको रिवाइज कर रहे हैं रिलीज प्लान को। तो रिलीज प्लान जो है वो भी साथ साथ अमेंड हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने कुछ तो डिलीवर किया, ना करने से कुछ डिलीवर करना बहुत खूब है, क्योंकि एक तो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो डिलीवर कुछ होता ही नहीं था, आखिर में जाके कुछ होता था। अब जो है हम इन रिलीज डेट पे मेजर डिलीवरी दे रहे हैं, अगर वो थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा भी है तो दैट इज नॉट द कंसर्न, बिकॉज दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द चेंजेस कस्टमर इज ब्रिंगिंग अबाउट। और हम उसको हर स्प्रिंट के बाद अपडेट भी कर रहे हैं, रिलीज प्लान भी उसको अपडेट करके बता रहे हैं, तो उसमें वरी की कोई बात नहीं। तो एक्सेप्टेड डिलीवरेबल आर डिलीवर्ड आर ट्रांसमिटेड अ फॉर्मल वर्किंग डिलीवरेबल एग्रीमेंट। अच्छा, मजे की बात है कि ये शिप डिलीवरेबल जो है ये रिलीज के एंड पे होंगी, ये स्प्रिंट के एंड पे नहीं होंगी। स्प्रिंट के एंड पे हमने जो चीज एक्सेप्ट करा ली हुई है वो पैकेट में बंद करके रख दी है एक साइड पर, लेकिन ये पड़ी रहेंगी चीजें, और शिप रिलीज ने जाना है तीसरे महीने में। तो जब 6 स्प्रिंटों के आइटम पूरे हो चुके होंगे तब कहीं जाके रिलीज निकलेगी, तो दैट इज कॉल्ड शिप डिलीवरेबल। तो एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स आर डिलीवर्ड टू आर ट्रांसमिटेड अ फॉर्मल वर्किंग डिलीवरेबल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द स्प्रिंट। फिर जनाब आपका रेट्रोस्पेक्ट प्रोजेक्ट है, तो ये पूरे प्रोजेक्ट का लेसन लर्न है। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, स्क्रम कोर टीम आ जाती है, असेंबल टू रेट्रोस्पेक्ट द प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट एंड इंटरनलाइज द लेसन लर्न, लेसन्स लेड टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्रीड एक्शनेबल इंप्रूवमेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट। आइंदा के लिए सबक हासिल करते हैं और उनको आइंदा के प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये है जी हमारी सारी प्रोसेस, ये आप देख सकते हैं। ये जो इधर लिखे हुए हैं ये चैप्टर नंबर है, चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 प्रोसेसेस को इंडिकेट कर रहे हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं 6 प्रोसेस हमारे इनिशिएशन के हैं, 5 प्रोसेस प्लानिंग के हैं, 3 प्रोसेस इंप्लीमेंट के हैं, 3 रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट के, और 2 रिलीज के। टोटल 19 प्रोसेस हैं। तो दिस इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि इनको याद ना रखा जा सके, बड़े सिंपल हैं और बड़े सिक्वेंशियल हैं, तरतीब में चलता है सारा काम, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ये है जी प्रोसेस। लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई हैं ये इतनी डिटेल में काफी है स्क्रम फंडामेंटल का एग्जाम देने के लिए, मगर इफ यू वांट टू गो फॉर स्क्रम मास्टर एग्जाम तो फिर आपको पूरा जो अभी मैं आपको मजीद कोर्स करवाऊंगा वो सारा अटेंड करना होगा, तब आपकी बात बनेगी। एक अभी एक दो छोटी छोटी सी मॉड्यूल्स और हैं, एक समरी में आपको दिखाता हूँ। ये फंडामेंटल समझने के यहाँ खत्म हो रहा है, तो उसकी समरी में आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल रिव्यू और समरी, दो छोटी छोटी सी वीडियो है। ओके जी, ये मेरा ख्याल है आपको ये नजर आ रहा है। जी सर। ओके, ये जनाब अब तक जो आपने पढ़ा है उसकी एक ब्रीफ समरी है। इसके अंदर सारा एम्फेसिस, साइज, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस स्टाइल, अपफ्रंट प्लानिंग, डोमेन, पर्सपेक्टिव टू चेंज वगैरह वगैरह पूरी समरी आपको ये देगा। इसको जरा एक नजर जरा सुनिए और फिर बात करते हैं। Hello, and welcome back to Scrum Master course. So far, we have discussed the benefits, purpose, scalability, principles, processes, phases, and aspects. Actually, everything one needs to know to implement Scrum. Have you ever wondered why Scrum is becoming more popular with every passing day? The simplest answer is that Scrum is better than traditional project management methods in many ways. Let's take a look at the differences between Scrum and a typical traditional project management method in a detailed way. The main difference between traditional project management models and the Scrum framework is the way in which the project is handled. Traditional project management is based on processes, while Scrum asks for a change in mindset with its focus on the people involved in the project.
Although processes and tools are necessary in completing a project successfully, it is always the people who undertake, participate in, and implement the project. They do the work that takes the project from idea to reality. According to Scrum, the key factors in any project are the people, and the emphasis should be on them and their actions. Various cross-functional teams work in parallel across sprints to deliver potentially shippable deliverables at the end of each sprint. In a traditional model, the amount of functionalities not done remains high, and no product is delivered until the end or very near the end of the project. What gives Scrum an edge over other practices when it comes to the size of the team? Scrum can be used for managing projects of all sizes. Scrum works well for most projects and team sizes. Large projects utilize multiple Scrum teams to ensure project progress. Since its early days, Scrum is focused on producing working software over comprehensive documentation. It still does, and has expanded that focus to include the incremental development of products other than software. While documentation is necessary and useful for any project, Scrum teams focus on interim deliverables in which real value is delivered to the customer. The documentation is done minimally, as and when it is required. Lessons learned are recorded during retrospective meetings. The process followed in Scrum is iterative, unlike the linear model used in traditional frameworks, such as the waterfall model. The iterative model helps product development improve over time. It maximizes opportunities for feedback and ensures potentially shippable versions of working products at the end of each sprint or iteration. Scrum encourages iterative decision-making based on data over the detailed upfront planning practiced in traditional waterfall-style project management. The focus is not on meeting the project's plan targets, but satisfying customer requirements. Traditional project management can leave a situation and be satisfied of all parties involved. This to minimize risk and achieve satisfaction. And Scrum, delivering the greatest the short based needs and providing from what needs to be done. नेट खराब हो Low planning and scheduling of activity to move immediately into execution. In today's business environment, change is rapid and long-range planning is problematic. Predicting every detail of new services and new products. नहीं चल रहा, एक मिनट. नहीं सर, वीडियो नहीं आ रही है. वो नेट थोड़ा गड़बड़ किया ना, उसने खराब कर दिया. एक मिनट में देखता हूँ भी. Product development is almost impossible. Scrum uses its low upfront planning framework to be adaptable and accommodating to change. Risk management is continuous in a Scrum-managed project, in which risk management works with the product owner, Scrum team, and Scrum Master to determine the best approach to handle identified risks. Whereas in traditional models, risks are handled up front, even before many risks have been identified. According to Scrum, each deliverable goes to the quality assurance team
as it is developed, and testing is carried out, keeping customer value in mind. Strict controls, such as acceptance criteria and a clear definition of done, are in place to avoid deviations from the customer's requirements. In traditional methods, process is given more importance. As opposed to the traditional control and command style of management, Scrum believes that today's workers have much more to offer than just their technical expertise, and therefore deliver greater value when self-organized. Unlike traditional project management methods, in which value justification is done before the project commences, here in Scrum, it is done throughout the project. The management style followed in Scrum is decentralized in nature, such that the workforce does not have to be dependent on management for everything, which is the case in the old autocratic project management methods. This encourages workers to be innovative problem solvers. Scrum believes that product development is a shared value creation process that needs all the stakeholders working and interacting together to deliver the greatest value. Command and control is the rule of the day in traditional models. How is team performance measured in Scrum and traditional models? In Scrum, it is measured in terms of the business value the team creates, while plan conformity decides the measurement of performance in traditional project methods. In Scrum, the team develops business value at the end of every sprint. Does Scrum give a good return on investment? The answer is a big yes, and the ROI starts early and continues throughout the project life. Whereas in traditional project management methods, the project starts providing ROI for the customer at the end of the project. How does Scrum value a customer's participation? Well, Scrum highly recommends and is designed for the involvement of customers throughout the project. In traditional methods, customer involvement during product or service development is usually very limited, but can vary depending on a project's life cycle. All in all, Scrum is an innovative framework for managing any type of project. It is suited to our time and age, ready to replace the traditional project management techniques that were created in and for a bygone era. With this, we come to the end of our module on Scrum versus traditional project management. Thank you for learning with us. अच्छा जी, इसमें सिर्फ उसने कुछ कंपैरिजंस बताए हैं, ये 11 उसने चीजें बताई हैं, एम्फेसिस है, साइज है, डॉक्यूमेंटेशन है। उसने ये बताया कि स्क्रम में लोगों पे हमारा फोकस है, जबकि ट्रेडिशनल में प्रोसेस पे फोकस है। स्क्रम छोटे से बड़े सारे प्रोजेक्ट कर सकता है, जबकि ट्रेडिशनल सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइंड है। डॉक्यूमेंटेशन स्क्रम में कम अज कम है, सिर्फ जरूरी चीजें, और ट्रेडिशनल में जो काम हो रहा है उससे भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, विच इज एसेंशियली कोई असर नहीं डाल रही प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोसेस स्टाइल यहाँ पे हमारा आइटरेटिव है। आपने देखा कि एक हम छोटी सी 2 हफ्ते की आइटरेशन को प्लान कर रहे थे, उसी को एग्जीक्यूट कर रहे थे, कितना आसान काम था। कहाँ जनाब आप 2 साल के प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं और लंबा लेके चल रहे हैं और एक एक चीज की नब्ज पे हाथ रखना पड़ता है। तो जब 2 हफ्ते का काम है, 2 हफ्ते के ऊपर ही हमें सिर्फ ध्यान देना है और अटेंशन देनी है, और हम रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अप फ्रंट प्लानिंग हमें नहीं करनी पड़ती, हम सिर्फ अप फ्रंट प्लानिंग करते हैं 2 हफ्ते की या 4 हफ्ते की, और ट्रेडिशनल में हम पूरे थ्रू आउट पूरे 2 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। वो एक बड़ा हाई अप फ्रंट प्लानिंग है। डोमेन स्क्रम में हम अनप्रिडिक्टेबल प्रोजेक्ट जिनका स्कोप क्लियर नहीं होता, उनको बड़े आराम से लेके चल सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी साथ साथ सीखते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन ट्रेडिशनल के अंदर ये सिर्फ वही प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं जिनका स्कोप क्लियर है, जो प्रिडिक्टेबल है, मतलब एम्पली प्रिडिक्टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही 100% हमें पता है क्या होना है, लेकिन फिर भी एम्पली प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या बनाना है, उसमें कोई तब्दीली होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। छोटे मोटे चांसेस होंगे तो वो चेंज रिक्वेस्ट से हैंडल हो सकते हैं। पर्सपेक्टिव टू चेंज में हम यहाँ स्क्रम में हर वक्त तैयार हो कामरान है, हम तो चेंज के इंतजार में बैठे हैं। तो हम अडेप्टेबिलिटी पे बिलीव करते हैं, और वो चेंज को रोक के बैठा हुआ है। सस्टेन तो कर रहा है ट्रेडिशनल, लेकिन वो चेंज के रोकने को सस्टेन कर रहा है।
लीडरशिप जो है यहाँ कोलेबरेटिव है स्क्रम में, और वहां पे ऑटोक्रेटिक है, कमांड एंड कंट्रोल स्टाइल है। तो ये ज्यादा बेहतर है सर्वेंट लीडरशिप जो है कोलेबरेटिव वाली। मैनेजमेंट स्टाइल डिसेंट्रलाइज्ड है, उसका ऑटोक्रेटिक है। फिर वही बात, डिसेंट्रलाइज इज डेफिनेटली बेटर, इट सपोर्ट्स द सर्वेंट लीडरशिप। परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपकी इधर बिजनेस वैल्यू के हिसाब से हो रही है, वहां परफॉर्म के प्लान के हिसाब से, प्लान के मुताबिक काम हुआ कि नहीं हुआ। अब भाई प्लान गलत भी हो सकता है, प्लान हो सकता है कि इट्स नो मोर सूटेबल। यहाँ पे हम बिजनेस वैल्यू को फोकस करके बैठे हैं, अगर वैल्यू नहीं तो कुछ भी नहीं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें यहाँ पे छोटे छोटे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैं, हर आइटरेशन में हमें कुछ जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ आउटपुट मिलती जाती है, और हमें अंदाजा होता जाता है हम कहाँ खड़े हैं। उसकी आरओआई मिलनी है जब काम खत्म होगा, प्रोजेक्ट के खत्म होने का इंतजार करें, तब आरओआई का पता चलेगा। फिर हम आगे आइंदा के लिए सबक हासिल ही कर पाएंगे, और हम करेक्ट कुछ नहीं कर सकते। खैर जी, इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ। एक वीडियो मैंने आपको और दिखानी है ताकि इस सारे को मैं सम अप कर सकूं। ये जनाब 6 मिनट में सारी डिस्कशन जो स्क्रम के ऊपर अभी तक हुई है उसको 6 मिनट में ये समराइज करेगा। ये जनाब आपको नजर आना शुरू हो गया होगा, राइट। इसके अंदर कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात होगी, एसबीओ के प्रिंसिपल, एस्पेक्ट, फेजेस, सब कुछ, फेजेस, प्रोसेस, सब कुछ क्विकली फ्लैश थ्रू करेगा आपके सामने। In this video, we'll let you know what Scrum is, all in less than 6 minutes. A project involves collaborative effort to create a new product, service, or other result, as defined in the project vision statement. Projects are impacted by constraints of time, cost, scope, quality, resources, organizational capabilities, and other limitations that make them difficult to initiate, plan and estimate, implement, review and retrospect, and release. It is therefore important for organizations to select and practice an appropriate project delivery methodology. This is where Scrum comes in. So what is Scrum? Scrum is one of the most popular agile methodologies. It is an adaptive, iterative, fast, flexible, and effective methodology designed to deliver significant value quickly and throughout a project. Scrum ensures transparency and communication and creates an environment of collective accountability and continuous progress. The Scrum framework, as defined in the SBOT guide, is structured in such a way that it supports product and service development in all types of industries and in any type of project, irrespective of its complexity. Let's now look at the 6 key principles of Scrum. The first Scrum principle is empirical process control, which is based on the ideas of transparency, inspection, and adaptation. Next is self-organization. Scrum is designed for today's employees who have much more knowledge to offer than just their technical expertise, and who can deliver greater value when they're self-organized. The third principle is collaboration, which involves all the stakeholders working and interacting together to deliver the greatest value. Next is value-based prioritization. Requirements and their respective tasks are prioritized based on the value they hold for the customer. This way, the requirements which are the most valuable to the customer are done first, leading to increased ROI. The fifth principle is time boxing. Time is the most crucial factor in Scrum projects, and meetings and work periods are time boxed. The daily stand-up meeting is a 15-minute meeting. A sprint is time boxed according to the needs of the project and can vary between 1 to 6 weeks. The sixth and last principle is iterative development, which allows for course correction as all the people involved get a better understanding of what needs to be delivered as part of the project and incorporate this learning in an iterative manner. Now, let's look at the Scrum aspects. Organization. Scrum roles fall into 2 broad categories, core roles and non-core roles.
The core roles include the product owner, who is responsible for articulating customer requirements and maintaining business justification, the Scrum Master, who ensures that the Scrum team is provided with an environment conducive to complete the project successfully, and the Scrum team, who is responsible for understanding the requirements specified by the product owner and creating the deliverables of the project. The non-core roles include stakeholders, the Scrum guidance body, vendors, the chief product owner, and the chief Scrum Master. Business justification. Value-driven delivery enables Scrum projects to start delivering results as soon as possible. Scrum's adaptability allows the project's objectives and processes to change if its business justification changes. Quality. In Scrum, quality is defined as the ability of the completed product or deliverables to meet the acceptance criteria and achieve the business value expected by the customer. To ensure a project meets quality requirements, Scrum adopts an approach of continuous improvement, whereby the team learns from experience and stakeholder engagement to constantly keep the prioritized product backlog updated. Change. Scrum projects welcome change by using short, iterative sprints that incorporate customer feedback on each sprint's deliverables. This enables the customer to regularly interact with the Scrum team members, view deliverables as they are ready, and change requirements if needed earlier in the sprint. Risk. In Scrum projects, risks are identified, assessed, and responded to based on two factors: the probability of each risk's occurrence and the possible impact in the event of such occurrence. Let's now briefly look at the Scrum processes. This diagram illustrates the Scrum project's flow. As you can see here, the Scrum cycle begins with a stakeholder meeting, during which the project vision is created. The product owner then develops a prioritized product backlog, which contains a prioritized list of business and project requirements written in the form of user stories. Each sprint begins with a sprint planning meeting, during which high-priority user stories are considered for inclusion in the sprint. A sprint generally lasts between 1 and 6 weeks and involves the Scrum team working to create potentially shippable deliverables or product increments. During the sprint, short, highly focused daily stand-up meetings are conducted, where team members discuss daily progress. Toward the end of the sprint, a sprint review meeting is held, during which the product owner and relevant stakeholders are provided a demonstration of the deliverables. The product owner accepts the deliverables only if they meet the predefined acceptance criteria. The sprint cycle ends with a retrospect sprint meeting, where the team discusses ways to improve processes and performance as they move forward into the subsequent sprint. Voila! We just covered the principles, aspects, and processes of Scrum in less than 6 minutes. आपने देखा जी कितनी मजेदार समरी थी। मतलब जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है उस सारे का खुलासा हो गया। जी जनाब, एनी कमेंट सो फार? नो सर। अच्छा जी, अभी जो मैं आपको आगे लेके चलूंगा सर एक चीज सर, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है? स्प्रिंट बैकलॉग, एक स्प्रिंट में आपने 8 काम उठाए, 8 यूजर स्टोरीज आप उठा के लाए थे। उन 8 यूजर स्टोरीज को आपने ब्रेक कर दिया कामों में, टास्क लिस्ट बन गई। ठीक है जी। उन टास्क लिस्ट को आपने फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, सीक्वेंस वगैरह बनाया, एस्टिमेशन की। जो एस्टिमेटेड टास्क लिस्ट है उसको फिर आपने स्प्रिंट बैकलॉग बनाया, एक उसमें रख दिया। जैसे प्रोडक्ट बैकलॉग था, जिस तरतीब में काम होने हैं उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर रख के बाकी नीचे। एक्चुअली दिस इज जैसे वो 8 यूजर स्टोरीज का जो ऑर्डर था, ये वही ऑर्डर है, लेकिन ये लिस्ट जो है स्प्रिंट बैकलॉग, ये टास्क है इसके अंदर। इसमें यूजर स्टोरीज नहीं है बल्कि टास्क है। यूं कह लीजिए कि वही 8 यूजर स्टोरीज ब्रोकन डाउन इनटू टास्क जहां पे लगी हुई। बात समझ आई? जी सर, ठीक है। राइट जी। अच्छा जी, अब ऐसा है कि नेक्स्ट हमारे पास स्क्रम मास्टर का हार्डकोर मटेरियल आ रहा है। इसमें
पहला मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मॉड्यूल हैं हमारे पास। हमारे पास स्क्रम के रोल्स के ऊपर डिस्कशन है, डिटेल डिस्कशन। स्क्रम के प्रोजेक्ट फेजेस पे डिटेल डिस्कशन है। फिर स्केलिंग दी स्क्रम, स्क्रम के जो हमने कहा साइमल्टेनियसली लार्ज प्रोजेक्ट भी किए जा सकते हैं, उसका पूरा तरीकेकार है। और फिर इसका कंक्लूजन है। रोल्स में मेरे पास 1 2 3 4 5 वीडियोस हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन है, जिसमें हम स्क्रम रोल्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट ओनर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन है, स्क्रम मास्टर पे, एक स्क्रम टीम पे है और एक नॉन कोर रोल्स पे है। अभी तो हमने सिर्फ खलासा सा सुना था ना कि ये कुछ होता है, अब इनको जरा ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह प्रोसेसेस को और उनके अंदर जो क्या कहते हैं फेजेस और उसके अंदर प्रोसेस, उनको बाद में इसके डिस्कस करेंगे। इससे पेशतर कि मैं इस पोर्शन को शुरू करूं, आई वुड लाइक कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें 10 मिनट का, और फिर एग्जैक्ट मतलब 10 मिनट के बाद हम इसको आगे शुरू करते हैं। विल इट बी ऑल राइट जी? ठीक है। यस सर, ठीक अभी है। तक जो हमने कर जी लिया, सर। इसकी बुनियाद पे आप स्क्रम फंडामेंटल का एग्जाम अभी दे सकते हैं। अभी दे लें या आज कल की तारीख में दे लें, जैसे भी दे लें। आप चाहें तो कल एग्जाम दे के मुझे बता दीजिएगा, आपका इंशाल्लाह पास हो जाएगा और आपने मुझे सर्टिफिकेट दिखाने हैं अपने। लेट्स हैव अ ब्रेक। जी जनाब, आर यू देयर? जी वहाब। जी सर। जी, शुरू किया जाए। बस 1 सेकंड सर, मैं दोबारा लॉग इन कर लूं। आवाज आपकी वो चेंज होगी 1 सेकंड में। अच्छा, इमरान आप हैं बैठे हुए? जी सर, कर लें शुरू। जी जनाब, इमरान आप बैठे हुए? इमरान गायब हो गया। अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। ये जी स्क्रम रोल्स हैं और इसके अंदर हम नेचुरली सब्सिक्वेंटली प्रोडक्ट ओनर को अलग डिस्कस करेंगे, स्क्रम मास्टर को अलग डिस्कस करेंगे, स्क्रम टीम को अलग डिस्कस करेंगे, नॉन कोर रोल्स। लेकिन पहला जो मॉड्यूल है इसमें हम इन चारों के बारे में बात करेंगे, जो हम पहले भी कर चुके हैं वैसे, लेकिन जरा थोड़ी सी ज्यादा तफसील में हो जाएगी। और इसको फिर अभी आप यहाँ पे देखिए। Hello, and welcome to this session of Scrum Master Certification course. There are 3 core roles in Scrum: the product owner, the Scrum Master, and the Scrum team, which is also called the developmental team. These are the people responsible for completing the project objectives. The roles and responsibilities of the traditional project manager are divided among these 3 core roles. Here, the roles guide suggests the following. For the product owner, the guide says it's imperative for product owners to read the entire chapter. The Scrum Master should also be familiar with this entire chapter, with primary focus on sections 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, and 3.9. The Scrum team should mainly focus on sections 3.6, 3.7, and 3.8. Don't worry though, we'll be talking about all of them one by one in our forthcoming sessions. So with this, we conclude another segment on organization. We'll see you in the next video when we discuss the key Scrum roles in detail. And thank you for learning with me. खैर ये तो हम पहले भी जानते हैं ये बात, इसलिए मैं आई विल नॉट हार्प मोर अबाउट इट. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट रोल, प्रोडक्ट ओनर.
और उसकी हम बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी प्लीज। आ, हमने कहा था कि शायद ये डिस्कस किया था कि स्क्रम मास्टर हम लोग चेंज कर सकते हैं, हाँ हाँ कभी कोई बन जाए कभी कोई बन जाए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चेंज तो कर इससे सकते हैं। प्रोजेक्ट के उस पर डिले को फर्क पड़ सकता है? वो कोई जो है अपनी जो है वो मुदीर बनने की कोशिश करे तो? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें ना, स्क्रम मास्टर की ताकत क्या है? द ओनली ताकत इज कि उसके पास स्क्रम का नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई स्क्रम के मुताबिक नहीं चल रहा तो उसे गाइड करना है उसने। इसके अलावा उसने करना क्या है? इम्पेडिमेंट दूर करने कोई भी कर सकता है। मतलब आप अपनी पूरी टीम को इस तरह तैयार करें कि एवरी बॉडी कैन बी रेडी टू टेक ओवर द रोल ऑफ स्क्रम मास्टर इफ रिक्वायर्ड। ये बेसिक फिलोसफी है कि सारे डेवलपमेंट टीम के हर मेंबर को इस काबिल होना चाहिए कि वो स्क्रम मास्टर का रोल अदा कर सके। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं रोजाना स्क्रम मास्टर चेंज होगा, आज तुम होगे, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो उसमें ये होता है कि इस बात की अहमियत खत्म हो जाती है कि स्क्रम मास्टर कोई पता नहीं कोई स्पेशल आदमी होता है। एनी बॉडी कैन बी अ स्क्रम मास्टर। सिर्फ इस तरह रोटेट करने से हम कम से कम उसकी जितना इल्म उसको स्क्रम का होना चाहिए वो हम सारों को दिलवाने की कोशिश करते हैं कि एवरीबॉडी शुड बी कैपेबल एनफ टू हैंडल दैट। इससे एक फायदा ये होगा कि कोई जो है वो दूसरे को तंग करने से पहले सोचेगा कल मेरी बारी भी आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। और तंग करने की तो बात ही नहीं है ना। स्क्रम मास्टर के रोल में तंग कहाँ करता है? वो कर ही नहीं सकता। नहीं, वो नहीं तंग कर, दूसरा करेगा ना कोई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो थैंक यू। ये जनाब प्रोडक्ट ओनर है हमारा आज। अच्छा, ये मेरा अभी तक ये नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ। ओके ओके। ये जनाब प्रोडक्ट ओनर की बात हम करने लगे हैं और इसके अंदर इसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वॉइस ऑफ कस्टमर जो इसका एक मेजर रोल है, ये इसकी बात होगी। और चीफ प्रोडक्ट ओनर के बारे में बात होगी। वेरी ब्रीफली हम इसको डिस्कस करते हैं। तकरीबन 3.5 मिनट की ये वीडियो है। And welcome to this session of Scrum Master Certification course. The product owner represents the interests of the stakeholder community to the Scrum team. The product owner is responsible for ensuring clear communication of product or service functionality requirements to the Scrum team, defining acceptance criteria, and ensuring that those criteria are met. In other words, the product owner is responsible for ensuring that the Scrum team delivers value. The product owner must always maintain a dual view. He or she must understand and support the needs and interests of all stakeholders, while also understanding the needs and workings of the Scrum team. Because the product owner must understand the needs and priorities of the stakeholders, including customers and users, this role is commonly referred to as the voice of the customer. The responsibilities of the product owner are numerous and varied, depending on which process is being conducted at the time. For example, during the Create Project Vision process, the product owner defines the project vision and helps create the project charter and project budget. During the Form Scrum Team process, the product owner helps determine the Scrum Team members, develop a collaboration plan, and develop the team building plan with the Scrum Master. Later, during the Create Sprint Backlog process, the product owner clarifies requirements to the Scrum team while creating the sprint backlog. And the product owner also participates in the retrospective sprint meetings during the retrospect project process. The other responsibilities of a product owner are determining the project's initial overall requirements and kicking off project activities. This may involve interaction with the program product owner and the portfolio product owner to ensure that the project aligns with direction provided by senior management. Representing users of the product or service with a thorough understanding of the user community. Securing the initial and ongoing financial resources for the project. Focusing on value creation and overall return on investment, ROI. Assessing the viability
and ensuring the delivery of the product or service. As the representative of the stakeholder, the product owner is said to be the voice of the customer, as he ensures that the explicit and implicit needs of the customer are translated into user stories in the prioritized product backlog, and later on used to create project deliverables for the customer. In the case of large projects with numerous Scrum teams, having a chief product owner may be a necessity. This role is responsible for coordinating the work of multiple product owners. The chief product owner prepares and maintains the overall prioritized product backlog for the large project, using it to coordinate work through the product owners of the Scrum teams. The product owners, in turn, manage their respective parts of the prioritized product backlog. The chief product owner also interfaces with the program product owner to ensure alignment of the large project with the program goals and objectives. Thank you for watching this video of Scrum Master Certification course. अच्छा, आपने नोट किया होगा कि हर सब्सिक्वेंट जो प्रेजेंटेशन या मैं दिखाता हूँ आपको, चीजें तो वही हैं, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा डिटेल में चलता जाता है। उस रोल को, जो प्रोडक्ट ओनर का रोल आप पहले 2-3 दफा सुन चुके हैं, आप जरा थोड़ा सा डिग डाउन करके हम उसकी और मजीद तफसीलात में जा रहे हैं। और हमने यहाँ पे बात की प्रोडक्ट ओनर का रोल क्या है जी। पहली बात यह है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग मैक्सिमम बिजनेस वैल्यू। ये जो बिजनेस वैल्यू है, ये आगे चल के आपको पता चलता है कि वो जो इसकी बिजनेस स्टेटमेंट बनानी है आपने, विजन स्टेटमेंट, वो बिजनेस वैल्यू के लिए जरूरी है। फिर ये वॉइस ऑफ कस्टमर भी है, तो इसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, आर्टिकुलेट करना है और फिर उसको डिफेंड करना है। मतलब वो कस्टमर का डिफेंस करेगा। है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, है तो हमारा इंचार्ज, लेकिन वो इंटरेस्ट किसका देख रहा है? कस्टमर का। क्यों? क्योंकि कस्टमर इज द बॉस। फिर मेंटेन्स बिजनेस जस्टिफिकेशन फॉर अ प्रोजेक्ट। वो जो बिजनेस वैल्यू हमने रखी थी और जो बिजनेस की जस्टिफिकेशन है, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि बिजनेस केस अगर सूट नहीं रहा तो प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। तो बिजनेस मैक्सिमम बिजनेस वैल्यू तो हम ला ही रहे हैं, लेकिन अगर उसके पीछे से बेसिक जस्टिफिकेशन ही खत्म हो गई तो ये किसने देखना है? ये प्रोडक्ट ओनर ने देखना है, और वो कस्टमर की वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जनाब, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका काम कोलैबोरेशन है, टीम के साथ भी और स्टेक होल्डर के साथ भी। मार्केट में उसने पर्सोनास बनाना, फीडबैक देना, डाटा थ्रू एक्सपोजिंग इंक्रीमेंट टू यूजर स्टोरीज और स्केचेस जो बनते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में, उनकी जिम्मेदारी तो इसके ऊपर ही है ना। वैल्यू, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू सोर्सेज, कॉस्ट स्ट्रक्चर, चैनल्स, विजन एंड रोड मैप, एम्पावरमेंट, बजटिंग, ये ओनरशिप है उसकी। खैर, तो प्रोडक्ट ओनर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर कम्युनिटी टू द स्क्रम टीम, ensuring clear communication of product or service functionality requirements to the scrum team, defining acceptance criteria। मतलब स्क्रम टीम के सामने जो चीज आएगी वो स्टेक होल्डर या जो हमारा कस्टमर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो भी कस्टमर प्रोवाइडेड है। तो प्रोडक्ट ओनर इंश्योर करता है कि स्क्रम टीम उसके मुताबिक डिलीवर करे। वैल्यू जो डिलीवर करनी है, कॉमनली रेफर टू एज द वॉइस ऑफ कस्टमर, मतलब वो खुद प्रोडक्ट ओनर को कहा जाता है कि ये वॉइस ऑफ कस्टमर है, ये कस्टमर का डिफेंस करता है, ये कस्टमर की आवाज बनता है, और स्क्रम टीम से काम जो करवाता है वो वही वैल्यू डिलीवर कराता है जो कि कस्टमर मांग रहा है। सो जैसा मैंने कहा, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर कम्युनिटी टू द स्क्रम टीम, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग क्लियर कम्युनिकेशन of product or service functionality requirement to the Scrum team, defining acceptance criteria and ensuring these criteria are met, or ensures that the Scrum team delivers value। तो आप ये देखें, ये वो उसके रोल्स हैं। Must also maintain a dual view। एक तो अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, वो तो करना ही है इसने, क्योंकि ये वॉइस ऑफ कस्टमर है।
दूसरी तरफ से अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वर्किंग ऑफ स्क्रम टीम। देखिए ना, स्क्रम टीम ने एक चीज कमिट कर दी है और आप जनाब आके तो कस्टमर कह रहे हैं नहीं जी मैं नहीं मानता, इसको चेंज करो, तो इसको यहाँ पर उसको यहाँ भी ही हैज टू पुट हिज फुट डाउन एंड ही हैज टू से कि जो चीज कमिट हो चुकी है वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर चेंज करवानी है नो प्रॉब्लम, वी विल पुट इट एज अ न्यू यूजर स्टोरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, मगर कोई तरीका कोई असूल होना जरूरी है। Must understand the needs and priorities of the stakeholder including the customers and users, commonly referred to as the voice of customer, जो हमने पहले भी बात की। फिर अगर आप इसकी जिम्मेदारियों की बात करते हैं, प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब कब क्या क्या है। एक तो क्रिएट प्रोजेक्ट विजन प्रोसेस, जब पहला प्रोसेस है इनिशिएशन का जहां विजन क्रिएट होता है, जहां पे प्रोडक्ट ओनर को मोबिलाइज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का विजन स्टेटमेंट जो है वो ये नहीं बनाता प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट ओनर उसमें मदद देता है, मगर वो दरअसल ही हेल्प्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्रोजेक्ट बजट, जो मोटा मोटा बजट है पूरे प्रोजेक्ट का विद द फिल्मजी पिक्चर जो छोटी मोटी उसके सामने है, तो एक उसी विजन स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके एक चार्टर और एक प्रोजेक्ट बजट क्रिएट करता है प्रोडक्ट ओनर। दिस इज पार्ट ऑफ क्रिएट प्रोजेक्ट विजन स्टेटमेंट। उसके बाद जब स्क्रम टीमें फॉर्म की जा रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी है कि स्क्रम टीम को फॉर्म करे, बेशक वो उसमें स्क्रम मास्टर से हेल्प ले। हेल्प डिटरमिन द स्क्रम टीम मेंबर्स, डेवलप अ कोलैबोरेशन प्लान एंड डेवलप द टीम बिल्डिंग प्लान विद द स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर की मदद जरूर शामिल है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? स्क्रम टीम को अपकीप करना, इसकी जिम्मेदारी है प्रोडक्ट ओनर की। फिर जनाब, जब स्प्रिंट बैकलॉग प्रोसेस बन रहा हो, तो जिस वक्त स्क्रम टीम काम कर रही है अपने स्प्रिंट बैकलॉग पे और उनको कहीं कोई शकूक व शुबात आ जाए, उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन मांगनी हो कस्टमर से या किसी से, तो वो जाएंगे प्रोडक्ट ओनर के पास। प्रोडक्ट ओनर उनको वो क्लैरिफिकेशंस लाके देगा, क्लैरिफाइज द रिक्वायरमेंट्स टू द स्क्रम टीम व्हाइल क्रिएटिंग द स्प्रिंट बैकलॉग। क्योंकि स्प्रिंट बैकलॉग में अभी जैसे वहाब ने पूछा, यहाँ टास्क होते हैं, यहाँ यूजर स्टोरीज नहीं होती, लेकिन टास्क भी यूजर स्टोरीज के ऑर्डर ही में होते हैं। तो ये जनाब अगर तफसील में आप देखना चाहें तो ये तमाम प्रोसेसेस हैं जिसमें प्रोडक्ट ओनर का कोई ना कोई रोल है। 8.1 क्रिएट प्रोजेक्ट विजन में इसका क्या रोल है? एक तो प्रोजेक्ट विजन बनाना, नंबर 2 चार्टर और बजट बनाना प्रोजेक्ट का मोटा हाई लेवल। दूसरा 8.2 जहां स्क्रम मास्टर और स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई होते हैं, हेल्प्स फाइनल द स्क्रम मास्टर फॉर द प्रोजेक्ट, और उसके बाद स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना भी इसकी जिम्मेदारी है। जहां स्क्रम टीम की बात है, हेल्प डिटरमिन स्क्रम टीम मेंबर्स, हेल्प डेवलप कोलैबोरेशन प्लान, हेल्प डेवलप द टीम बिल्डिंग प्लान विद द स्क्रम मास्टर। फिर एपिक्स है, डेवलप एपिक्स के अंदर तो इसका मेजर रोल है, इट क्रिएट द एपिक्स एंड पर्सोनास, स्टेक ये अपना स्टेक होल्डर के साथ मिलके, कस्टमर के साथ मिलके। फिर क्रिएट प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग जो है, उसमें प्रायोरिटाइजेस द प्रोडक्ट प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम एंड डिफाइंस डन क्राइटेरिया। ये जिम्मेदारी इसी की है, प्रोडक्ट ओनर की, भले इसमें स्क्रम टीम और स्क्रम मास्टर इसके मददगार हों। इसी तरह कंडक्ट रिलीज प्लानिंग, जिम्मेदारी प्रोडक्ट ओनर की है, क्रिएट्स रिलीज प्लानिंग स्केड्यूल एंड हेल्प्स डिटरमिन लेंथ ऑफ स्प्रिंट। ये वो चीजें हैं जहां पर इसका इन 6 प्रोसेस में 8.1 2 3 4 5 6 इसमें इसका प्रोडक्ट ओनर का रोल है। आगे देखिए 9 में चलते हैं। क्रिएट यूजर स्टोरीज जब हो रही हैं, ये कहाँ हो रही हैं? याद कीजिएगा, ये है तो प्लानिंग, लेकिन इस वक्त जो आपकी टीम है स्क्रम टीम, वो स्प्रिंट के अंदर नहीं बैठी हुई, वो प्रायोरिटाइज बैकलॉग के पास आई हुई है और जहां पे वो एपिक्स को तोड़ के स्टोरीज बना रही है। इसके बाद वो उनका एस्टिमेट वगैरह करेगी, फिर कमिट करेगी। तो ये इस वक्त प्रोडक्ट ओनर का रोल है। यूजर स्टोरीज बनाना जिम्मेदारी तो प्रोडक्ट ओनर की थी, वो तो आए हैं इसकी मदद करने के लिए। डिफाइंस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, हर यूजर स्टोरी का यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लाजमी होना चाहिए।
तो ये दो चीजें इसने जब यूजर स्टोरीज बन रही हैं तो इंश्योर करना है। फिर जब अप्रूव, एस्टिमेट एंड कमिट यूजर स्टोरीज हो रही हैं तो अप्रूवल देने वाली अथॉरिटी प्रोडक्ट ओनर है, और फिर वो फैसिलिटेट करेगा स्क्रम टीम को एंड उसको कमिट स्टोरीज करने में कि यार मेरे पास, मेरे हवाले से तो ये 10 चीजें आप उठा के ले जाओ, मेरी तरफ से अप्रूव्ड है, लेकिन वो कहते हैं सर हम 8 लेके जा रहे हैं। वो कहेगा ठीक है, फिर कमिट करो अपनी स्टोरीज को। क्रिएट टास्क, जब अच्छा ये अभी कहाँ चले गए, अब टीम जो है अपने टास्क क्रिएट कर रही है, फिर उनको मतलब यूजर स्टोरीज को तोड़ कर टास्क बना रही है। तो यहाँ पे अगर उनको जरूरत पड़े टीम को, तो उनको ये एक्सप्लेन करेगा कि यूजर स्टोरीज टू द स्क्रम टीम व्हाइल क्रिएटिंग द टास्क लिस्ट। अगर टास्क लिस्ट बनाने में उनको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कि स्टोरी में होना क्या है, तो वो प्रोडक्ट ओनर से बात करेंगे, प्रोडक्ट ओनर उन्हें एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि ही इज द अथॉरिटी। कस्टमर के साथ कस्टमर फेसिंग ये है, रिक्वायरमेंट्स इसने इकट्ठी की हैं, इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता, ये क्लैरिफाई करेगा। और अगर खुद क्लैरिफाई ना कर सका तो कस्टमर से पूछ लेगा जाके। एस्टिमेट टास्क में भी इसका रोल है। ही विल प्रोवाइड गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन टू द स्क्रम टीम इन एस्टिमेटिंग एफर्ट फॉर टास्क। फिर क्रिएट स्प्रिंट बैकलॉग जब हो रहा है, जिसमें मैंने बताया था कि आपको जो टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लिया जाता है इन ऑर्डर ऑफ यूजर स्टोरीज। क्लैरिफाइज रिक्वायरमेंट टू द स्क्रम टीम व्हाइल क्रिएटिंग द स्प्रिंट बैकलॉग। फिर जब वो डिलीवरेबल क्रिएट कर रहे होते हैं अपना एग्जीक्यूशन के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो अगेन क्लैरिफाइज द बिजनेस रिक्वायरमेंट टू द स्क्रम टीम। और जब वो आते हैं वापस और ग्रूम करने के लिए प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग को, तो देन ही हेल्प्स देम ग्रूम द प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग। फिर आप चले जहां पे अब आप उसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहे हैं या वो रेट्रोस्पेक्ट वगैरह होना है, तो डिमॉन्स्ट्रेट एंड वैलिडेट में तो मेजर रोल है प्रोडक्ट ओनर का, बिकॉज ही इज द पर्सन हु विल ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डिलीवरेबल फ्रॉम द साइड ऑफ द कस्टमर। He provides necessary feedback to the Scrum Master and the Scrum team and updates the release plan. जब ये खत्म होता है तो फिर वो रिलीज प्लान को अपडेट करता है और प्रोडक्ट बैकलॉग को अपडेट करता है। फिर जनाब जब शिप डिलीवरेबल की बारी आती है तो हेल्प्स डिप्लॉय प्रोडक्ट रिलीजेस एंड कोऑर्डिनेट्स दिस विद द कस्टमर, क्योंकि रिलीज को मैनेज करना प्रोडक्ट ओनर का काम है। और रेट्रोस्पेक्ट प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट की जब लेसन लर्न हो रहे हैं तो लाजमी बात है कि यहाँ प्रोडक्ट ओनर का रोल है। ही पार्टिसिपेट्स इन द रेट्रोस्पेक्टिव स्प्रिंट मीटिंग्स। इसके अलावा जो जिम्मेदारियां हैं, डिटर्मिनिंग द प्रोजेक्ट्स इनिशियल ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स एंड किकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, रिप्रेजेंटिंग यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस विद अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर कम्युनिटी। ये स्टेक होल्डर है ना, ये जो यूजर है, एंड यूजर है या जो भी है, ये स्टेक होल्डर्स है, उनको आइडेंटिफाई करना इसका काम है। Securing the initial and ongoing financial resources for the project। बेशक ये जो ये भी मेजर स्टेक होल्डर हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। फोकसिंग ऑन वैल्यू क्रिएशन एंड ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। असेसिंग द वायबिलिटी एंड इंश्योरिंग द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। फिर वॉइस ऑफ कस्टमर के हवाले से ensure that the explicit and implicit need of the customer are translated into user stories। मतलब ये इसका काम है कि ये इंश्योर करे कि जो कस्टमर बोल सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, और जो नहीं बोल सकता, बता नहीं सकता और समझा नहीं सकता, उसको भी समझे और उसको सही रिप्रेजेंट करे। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। लेटर ऑन यूज्ड टू क्रिएट प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। फिर जनाब जो चीफ प्रोडक्ट ओनर का रोल है, इन केस यू हैव गॉट मल्टीपल टीम्स वर्किंग, देन यू विल हैव multiple scrum masters and multiple product owners. So every product owner would be responsible for a part of the major deliverable। ठीक है ना जी। तो जो चीफ प्रोडक्ट ओनर होगा वो ओवरऑल जो बिग डिलीवरेबल है उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, और बाकी प्रोडक्ट ओनर जो हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट स्ट्रीम्स के रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वो फिर अपनी अपनी टीमों से उस एंगल में काम करवा रहे होंगे। So, chief product owner is responsible for coordinating the work of multiple product owners, prepares and maintains overall prioritized product backlog for large projects। फिर जनाब इसी तरह से हम
आ जाएंगे स्क्रम मास्टर के रोल के ऊपर। स्क्रम मास्टर का भी इसी तरीके के साथ हम सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करेंगे और चीफ स्क्रम मास्टर के रोल को भी डिस्कस करेंगे। कन्वीन स्क्रम ऑफ स्क्रम की भी बात होगी। ये सब कुछ जो है स्क्रम मास्टर के रोल में आएगा। तो जनाब इसको मैं शेयर कर लेता हूं। ये आपको नजर आ गया होगा अभी। ये मॉड्यूल है जी हमारा स्क्रम मास्टर का, और स्क्रम मास्टर में वही बातें हैं, रोल की बात होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मल्टीपल स्क्रम टीम्स की बात होगी, चीफ स्क्रम मास्टर की बात होगी। दिस इज व्हाट इज हियर। Hello, and welcome to this session of Scrum Master Certification course. The Scrum Master is the servant leader of the Scrum team, who moderates and facilitates team interactions as team coach and motivator. The Scrum Master is responsible for ensuring the team has a productive work environment by guarding the team from external influences, removing any obstacles, and enforcing Scrum principles, aspects, and processes. The Scrum Master's responsibilities are many, and they change depending on which process is being conducted at the time. For example, during the Develop Epics process, the Scrum Master facilitates creation of the epics and personas. Likewise, during the Create User Stories process, the Scrum Master assists the Scrum team in creating user stories and their acceptance criteria. And during the Create Deliverables process, the Scrum Master supports the Scrum team in creating the deliverables agreed to for the sprint and helps update the Scrum board and impediment log. From these examples, you should be able to see why we refer to the Scrum Master as a servant leader. That role is really there to lead by supporting the Scrum team. Now, when there are larger projects to be executed, it's necessary to have multiple Scrum teams working in parallel. And of course, it's crucial that information gathered from one team be appropriately communicated to other teams. The Chief Scrum Master is responsible for this activity. Coordination across various Scrum teams working on a project is typically done through the Scrum of Scrums meeting. This is analogous to the daily stand-up meeting, as is facilitated by the Chief Scrum Master. The Chief Scrum Master is typically the individual responsible for addressing impediments that impact more than one Scrum team. Here we can see what questions are addressed in the Scrum of Scrums. What has your team been working on since the last meeting? What is your team going to get done by the next meeting? What are your impediments, and can other teams help you? What are the decisions made in your team which could impact other teams? Typically, any inter-team issues are addressed by the interested parties in a session meeting following the Scrum of Scrums meeting. The Chief Scrum Master facilitates this session. Thank you for watching this video of Scrum Master Certification course. राइट जी, काफी सिंपल था, लेकिन इसको एक नजर देख लेते हैं क्योंकि हम इसको जरा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहां तक रोल्स का ताल्लुक है, हम स्क्रम मास्टर के बारे में जानते हैं कि ये एक सर्वेंट लीडर है ऑफ द स्क्रम टीम, who moderates and facilitates the interactions as team coach and motivator. Scrum Master is responsible for ensuring that the team has a productive work environment by guarding the team from external influences, removing any obstacles, and enforcing Scrum principles, aspects, and processes. ये बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर उसने स्क्रम मास्टर की यहाँ पे दे दी है कि स्क्रम लीडर तो वो है ही, वो मॉडरेट और फैसिलिटेट भी कर रहा है टीम को, टीम के इंटरेक्शन को, टीम कोच और मोटिवेटर का भी फर्ज अदा कर रहा है, और जिम्मेदार है कि टीम को प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट मिले, मतलब फैसिलिटेट कर रहा है, उनको गार्ड कर रहा है कि कोई उनको अननेसेसरीली तंग ना करे, उनके रास्ते के
रोड़े जो हैं वो हटा रहा है, और जो स्क्रम प्रिंसिपल्स, एस्पेक्ट्स और प्रोसेसेस हमने पढ़ी हैं उनका क्या कहते हैं कि उनका उस नॉलेज का प्रोटेक्टर है, और इंश्योर करता है कि लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असूलों के मुताबिक काम करें। स्क्रम प्रिंसिपल, एस्पेक्ट्स और प्रोसेसेस के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो टीम को गाइड करता है। कोई लीड रोल नहीं लेता, वो सर्वेंट लीडरशिप के रोल में ही रहता है, लीड रोल नहीं लेता, और सिर्फ सजेस्टिव रोल होता है उसका कि अच्छा आपको प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ, आपको ये बात समझ नहीं आ रही, ये प्रिंसिपल मैं आपको सिखा देता हूँ, ट्रेनिंग दे देता हूँ, एंड थिंग्स लाइक दैट। बट ऑल द डिसीजंस इन द स्क्रम टीम आर टेकन बाय द टीम, नॉट द स्क्रम मास्टर। ये बात मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रम मास्टर डज नॉट टेक एनी डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द टीम हैज अ प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह। ये डायग्राम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। फैसिलिटेट करता है तमाम को, टीम रिलीज प्लानिंग और टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज हैं उनमें उनमें मददगार साबित होता है। डेफिनेशन ऑफ डन, फिर आपके लर्न एंड शेयर करता है, कॉन्टिन्यूस सेल्फ लर्निंग करता रहता है, कुछ सीखता रहता है, कोच का रोल अदा करता है, कंसल्ट करता है, टीम की कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज एक्सपीरियंस और फीडबैक, सपोर्टिंग टीम मॉनिटरिंग मैट्रिक्स, फिर प्रोटेक्ट करता है, मेडिएट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, शील्ड करता है टीम को, प्रोटेक्ट करता है इम्पेडिमेंट से, फिर रिवॉर्ड करता है अगर वो अच्छा काम करें, अप्रिशिएट करता है, प्राइड लेता है उनके अंदर, सक्सेस उनकी सेलिब्रेट करता है, फिर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग में उनके जो चार्ट्स वगैरह हैं उसमें उनके रिजल्ट्स शो हो रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स हैं, मेंटेनिंग स्क्रम टूल्स हैं, और इनकरेज करता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन को, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीम को, ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस को, अडॉप्टेबिलिटी को। ये सब चीजों का वो यूं कह लें अलंबरदार है। तो जिम्मेदारियों में स्क्रम मास्टर जिम्मेदारियां काफी ज्यादा हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। फैसिलिटेट्स क्रिएशन ऑफ द एपिक्स एंड पर्सोना, यहां लफ्ज इस्तेमाल किया फैसिलिटेट। खुद से ये एपिक नहीं बनाता, ना ही पर्सोना बनाता है, लेकिन अपनी टीम को गाइड करता है कि वो प्रोडक्ट ओनर को कैसे मदद कर सकते हैं इन द क्रिएशन ऑफ एपिक्स, पर्सोनास, यूजर स्टोरीज वगैरह। असिस्ट द स्क्रम टीम इन क्रिएटिंग द यूजर स्टोरीज एंड देयर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। फिर वही बात। फिर जनाब, हेल्प्स अपडेट द स्क्रम बोर्ड एंड द एम्पेडिमेंट लॉग। हर जगह खादम हाजिर है, अगर स्क्रम बोर्ड पे कोई अपडेशन करनी है तो उनकी मदद करेगा, भाई इधर लगा हुआ है इस जगह पे करें, और मतलब इंश्योर करेगा कि जो भी काम हो वो सही जगह पे लगाया जाए। जिम्मेदारियां अगर हम हर प्रोसेस के हिसाब से देखें, 8.1 में तो उसका रोल ही नहीं है, क्योंकि 8.1 में तो ये पैदा ही नहीं हुआ था, उस वक्त तो स्क्रम अपना प्रोडक्ट ओनर ऑन बोर्ड आया था। अब जबकि प्रोडक्ट ओनर ने इसको सिलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये प्रोडक्ट ओनर की मदद करेगा। ये इधर ये प्रोसेस है आइडेंटिफाई स्क्रम मास्टर एंड स्टेक होल्डर। तो स्क्रम मास्टर जो ही आता है तो वो फौरन मदद शुरू कर देता है प्रोडक्ट ओनर की इन आइडेंटिफाइंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स। फिर जब स्क्रम टीम मोबिलाइज होनी होती है तो फैसिलिटेट करता है स्क्रम टीम की सिलेक्शन को। फैसिलिटेट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, सिलेक्ट का लफ्ज नहीं है, क्योंकि टीम बनाना, स्क्रम टीम बनाना प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी है, स्क्रम मास्टर की नहीं है। स्क्रम मास्टर फैसिलिटेशन करेगा। फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ द कोलैबोरेशन प्लान एंड टीम बिल्डिंग प्लान। और आपको याद होगा कि प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी में उसने कहा था कोलैबोरेशन प्लान बनाना और टीम बिल्डिंग प्लान बनाना, ये फैसिलिटेट कर रहा है, स्क्रम मास्टर फैसिलिटेट कर रहा है। एंश्योर बैकअप रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर स्मूथ प्रोजेक्ट फंक्शनिंग। मतलब ये बंदे जो काम पे लगे हुए हैं, तो लगे हुए हैं, हमारे पास कोई बैकअप में भी बंदे बैठे हैं कि नहीं बैठे हुए, ये इंश्योर करना है, इसका काम है। डेवलप एपिक्स का काम जब आता है तो फैसिलिटेट्स क्रिएशन ऑफ एपिक्स एंड पर्सोनास। फिर फैसिलिटेशन का रोल है, फैसिलिटेशन सिर्फ मददगार का रोल है,
Create prioritized product backlog. Helps product owner in creation of the prioritized product backlog and the definition of done criteria. इसमें ये भी मदद करता है और स्क्रम टीम भी मदद करती है. Conduct release planning. Coordinates creation of the release planning schedule and determine the length of sprint. ये दो काम करने में ये मददगार साबित होता है. Create user stories. Assist the Scrum team in creating the user stories. नहीं, ये तो गलत आ गया. सर सही है ना, असिस्ट करता है ना वो. Assist नहीं, हम स्क्रम मास्टर पढ़ा वो नहीं. खुद से. ये प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं. हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हेडिंग चेंज है, ठीक है सर. ये गलत हो गया. खैर वो छोड़े, किताब में लिखा हुआ है ये सब कुछ, आप दूसरे ये देख सकते हैं. मल्टीपल स्क्रम टीम्स जब आएंगी, when larger projects are to be executed, it is necessary to have multiple scrum teams working in parallel. लाजमी बात है. अच्छा, अब यहाँ इसका क्या रोल है कि जो मल्टीपल स्क्रम टीम्स काम कर रही हैं, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन. मतलब ये है कि आपके किसी काम से इनको दिक्कत ना हो, टीमों को, दूसरी टीमों को, और दूसरी टीमों की वजह से आपको दिक्कत ना हो. तो इसके सवाल फिर 4 बन जाते हैं. जैसे उसने बताया था, स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग एनालॉगस टू दी, मतलब जैसे डेली स्टैंड अप मीटिंग स्क्रम की होती है, तो स्क्रम ऑफ स्क्रम को जो मीटिंग है वो होगी इससे ऊपर के लेवल की, लेकिन वो डेली नहीं होगी. जो स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग होगी उसको चीफ स्क्रम मास्टर फैसिलिटेट करेगा, लेकिन डेली नहीं होगी. उसकी मुद्दत आप खुद मुकर्रर कर सकते हैं. स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर खुद मुकर्रर करेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दी, क्या कहते हैं, आपके स्प्रिंट के साइज के ऊपर, रिलीज प्लानिंग के ऊपर, बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है. लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जनरली जो आपके स्प्रिंट का साइज हो, उससे उससे आधे टाइम में जरूर टीम ये स्क्रम ऑफ स्क्रम हो जाए. मतलब अगर 2 हफ्ते का है तो फिर हफ्ते के हफ्ते स्क्रम ऑफ स्क्रम होनी चाहिए. अगर 4 हफ्ते का है तो 2 हफ्ते बाद होनी चाहिए, या समथिंग लाइक दैट. आमतौर पे ये कहते हैं जी महीने बाद भी हो सकती है स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग, लेकिन बुनियादी तौर पे करेक्शन का टाइम जरूर होना चाहिए. इसमें 4 सवाल पूछे जाते हैं. आपकी टीम ने अब तक क्या किया पिछली मीटिंग से लेके अब तक. अगर पिछले महीने मीटिंग हुई तो अब तक आपने क्या परफॉर्मेंस दी है. अगले महीने में आपका क्या टारगेट है. आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आ रही दूसरी टीमों से, और आपके किसी काम या फैसले की वजह से किसी और टीम पे कोई असर तो नहीं पड़ने वाला. ये 4 सवालों का जवाब हर स्क्रम मास्टर देता है. जितने भी स्क्रम मास्टर होते हैं वहां पे, यहाँ पे टाइम की कोई बहुत ज्यादा कैद नहीं होती कि जी आपने 10 मिनट में मीटिंग खत्म करनी है. हो सकता है वहां पे ज्यादा स्क्रम मास्टर्स हों और ज्यादा बातचीत हो जाए. इसमें जरा थोड़ा ड्यूरेशन टाइम फ्लेक्स होता है. ओके, फिर आ जाती थी आपकी स्क्रम टीम. ओके जी, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ. ये जनाब आपका स्क्रम टीम है. आपको शायद नजर आना शुरू हो गया होगा. Hello, and welcome to this session of Scrum Master Certification course. The Scrum team is sometimes referred to as the development team because they're responsible for developing the product or result. It consists of a group of individuals who work on the user stories in the sprint backlog to create the deliverables for the project. The Scrum team, of course, has many different responsibilities, which will change according to what process is being conducted at the time. For instance, during creating deliverables, the
deliverables, identifies risks, and implements risk mitigation if and कट रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है सही अभी आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप? जी सर, अब आवाज ठीक हो गई है। ओके। जी सर, अब आवाज ठीक हो गई है। welcome to this session of Scrum Master Certification course. The Scrum team is sometimes referred to as the development team because they're responsible for developing the product or result. It consists of a group of user stories in the sprint backlog to create the project. The Scrum team course many सर वीडियो की आवाज आहिस्ता हो गई है। सर मतलब अब आवाज ठीक आ रही लेकिन बहुत आहिस्ता है आवाज। Okay, let me check. Hello and welcome to this session of Scrum Master Certification course. जी सर ठीक है बिल्कुल। Scrum team is sometimes referred to as the development team because they're responsible for developing the product or result. For the project. The Scrum team, of course, which will change according to what process is being conducted at the time. For instance, during the create identifies risks and implement risk if any. And dependencies. During the team updates burn down chart, discusses issues faced by the team, identifies risks, if any, and submits